guys to the New Indian Express Game Changers Roundtable 2024. Every year we do this conversation with a mixed bunch of cine artists because we feel that different sort of energies, insights come from different facets of filmmaking. Makes for a very interesting chat. We call this Game Changers because we feel that the films you have created and you have been part of has brought some sort of new energy and some interesting thing, something that stayed personally with me also. I would start with introducing our guests. We have first Varun Grover, comedian, lyricist, screenwriter, now a director, children's book writer, lover of cats and Bengali food. Okay. Bangla Bhasha also. His film All India Rank released this year. वैसे पिछले साल I think फेस्टिवल्स में रही थी 2023 में. इस साल और फिर Netflix. ऑल इंडिया रैंक वाज जब मैंने देखा इतना स्वीट इंटरेस्टिंग बहुत ही ऑनेस्ट sort of film I found it to be. Also apart from being a coming of age story, it was also an ode to 90s और nostalgia. जी. Okay, तो उसमें जो फिल्म में एक ठहराव था, एक बच्चे की कहानी है जिसको अपने पेरेंट्स के आईटी ड्रीम को आगे लेके जाना है. तो I think this was something, some sort of newness, some sort of freshness I enjoyed in the film. So thank you Varun for being here. We have Irshad Kamil, lyricist for Amar Singh Chamkila. आपने I think Irshad, you have made me fall in love with Hindi film music all over again. ठीक है. So thank you for being here. गाने मैंने I think नरम कलजा तो मेरी सारी प्लेलिस्ट पे है, तो मैंने कई बार वो गाना सुना है, मुझे बहुत पसंद है. Thank you again for being here. We have Pratik Gandhi. You have surprised me, Pratik, this year with Madgaon Express. I didn't expect you to be so good. आप अच्छे एक्टर तो हैं, but कॉमेडी इतना अच्छे से, इट वाज रियली अमेजिंग. उसके अलावा दो प्यार जो कि मैंने अभी देखी, और दो बड़े अलग कैरेक्टर्स और दो इतने अच्छे से. पिंकू ऑन कोकेन, आई थिंक उनका स्टैंड अलोन फिल्म अलग से होना चाहिए. ठीक है, आई थिंक आपको कुणाल सर से बात करनी चाहिए. देयर शुड बी अ फिल्म अबाउट इट. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. वी हैव प्रीति पनीगरी, आई थिंक यंगेस्ट. Yes. And first time actor this year with Girls Will Be Girls. Yes. Okay, I saw your film Preeti. What an amazing performance, seriously. काफी और वो सारे मोमेंट्स जिसमें आप अकेली हैं, जिसमें आपको शीशे में देख के करना है, तो कोई है नहीं उसमें इतना नुआंसेस, और वो भी अपनी फर्स्ट फिल्म में. So it was really enjoyable to see you. So thank you again for coming. We have Atul Sabharwal for Berlin. Very brainy, intelligent, very literary sort of spy film. वो भी ऐसे टाइम पे जब spy films are filled with over the top action, a lot of mass sensibilities. I enjoyed Berlin a lot. ठीक है, the screenplay was good. You see a film and you want to read its screenplay. That was Berlin for me. So thank you for coming. Guys, I want to start off this first question on a little nostalgic note. I want to ask you guys, what is that one film or a performance or a song which you first heard and you realized that there can be some new possibilities for this medium? कुछ ऐसा नया जो आपने सुना, जो आपने एक्सपीरियंस किया और आपको लगा कि यार this also can be done. Things don't have to be done in a certain way. ये भी हो सकता है. मतलब ये इस साल की नहीं, ऑल ओवर, और कभी सबसे पहली बार आपने कुछ देखा और आपको लगा कि यार समथिंग वेरी न्यू एक्सपीरियंस जो बिल्कुल भी रन ऑफ द मिल ना हो. बताइए कौन. वरुण तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे आईआईटी का सवाल है. मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसा ही सवाल है. सॉरी, पहला हेवी सवाल. एक्चुअली मुझे लगा कि तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरी शर्ट भी सेक्सी सुन के क्या कुछ किया जा सकता है जाके. मतलब ये अपना स्पेस है, किया जा सकता है. सो आई कैन. नहीं ऐसे बिल्कुल हेवी नहीं सोचना, आराम से जो आपको पहले से कुछ सोच सकते हैं. मैं यहाँ से थोड़ी दूसरी दिशा में जाता हूँ. मैंने जब स्कूल में था या कॉलेज फर्स्ट ईयर में था शायद जी, तो गुनाहों का देवता मैंने पढ़ी थी, धर्मवीर भारती. तो उनका नॉवेल, तब तक मैं कहानियां पढ़ता था, स्कूल की कहानियां, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से, तो बहुत कहानियां पढ़ी. और नॉवेल देखकर मुझे थोड़ा डर लगता था कि इतना बड़ा, मतलब शॉर्ट स्टोरीज पढ़ ली, स्कूल की किताबें पढ़ ली, कविताएं पढ़ ली,
लेकिन नॉवेल देख के लगता था कि ये 250-300 पन्ने और इसमें कोई बीच में फोटो भी नहीं है, कम से कम एक इलस्ट्रेशन डाल दो कि ये दिखते कैसे हैं, थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ तो आ जाए कि हाँ ये कौन है, ये सुधा और चंदर कैसे दिखते हैं। खुद ही बनाना पड़ेगा, उनकी शक्ल भी खुद बनानी पड़े, उनके घर की दीवारों का पेंट भी खुद करना पड़े, वो सब करना पड़ेगा, ये डर था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया और जब गुनाहों का देवता खत्म हुई, जब मैंने पढ़ने मतलब लास्ट कुछ बचे थे 30 पन्ने, और मैं घर आ रहा था कॉलेज से, मैं बनारस में पढ़ता था IIT BHU में, लखनऊ में मेरा घर था, 6 घंटे की ट्रेन थी हमारी, 6 घंटा लगता था ट्रेन में, और मेरे कुछ लास्ट के 40-50 पन्ने बचे होंगे, मैं ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन में मैं पढ़ने लगा। लास्ट जहाँ वो खत्म हुआ, मैं तो अब ट्रेन में मैं ऐसे फूट फूट के रो रहा हूँ अकेला, और ऊपर की बर्थ पे मैं बैठा था और लोग आसपास आके मुझे कंसोल करने लगे। उनको लगा कि कुछ तो हादसा हो गया है या कोई बहुत बड़ा इसका ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है, और मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा कि और बेवकूफ़ लगूंगा मैं बता दूं कि मैं एक किताब की वजह से रो रहा हूँ, एक किताब है जो कि आज से 60 साल पहले लिखी गई है, या और मैं उसकी वजह से, तो वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। दैट मोमेंट, दैट स्टोरीज कैन मूव यू so much. Someone 60 years later is crying on the lives of 2 fictional characters. Yeah. वो मेरे लिए बहुत ही एक झटका भी लगा, और मुझे लगा कि हाँ ये एक जिंदगी है, अगर इसमें हम पहुंच जाएं, जहाँ पे हम कुछ करें जिसमें कि जरूरी नहीं है कोई रोए 60 साल बाद, हंसे, ये भी हो सकता है, या कुछ फील करे, कुछ फील करे। तो वो पहला मेरे लिए शायद सबसे पहला लाइक आर्ट हिटिंग मी इन माय फेस एंड टेलिंग मी कि भाई जो इमेजिनरी दुनिया है ना, वो भी उतनी ही पावरफुल है जितनी ये रियल दुनिया होती है, और कई बार ज्यादा पावरफुल है। सो दैट वाज आई थिंक फॉर मी द फर्स्ट। सॉरी, वो सेक्सी भी बहुत वो बहुत डिफरेंट एनर्जी है, वो दो अलग एनर्जी है। मतलब ये नहीं, वो सीरियस नोट पे भी मैं बात आपको बताऊं, होता क्या है ना, जब आप छोटे होते हैं तो आप बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं, और मुतासिर होने के लिए पूरे मोहल्ले में अगर एक ही टीवी हो ना, तो सारे बराबर से मुतासिर होते हैं, राइट। तो उसमें आपके लिए मुगले आजम इजिकल टू जय हनुमान इजिकल टू मेरा नाम जोकर, सब कुछ बराबर है, राइट। तो वो जो ये शुरुआत होती है ना कि अभी आपने करना क्या है, अभी आपने जाना क्या है, मुतासिर होते हैं। एक छोटी सी बात ये है, हमारा मोहल्ला बहुत ही कामगर लोगों का मोहल्ला था, मतलब दिहाड़ीदार मजदूर रहते थे जो वहाँ पे सब, और वही बच्चे हमारे दोस्त भी थे सारे के सारे। और परचून की दुकान होती थी, उस दुकान में चूरन की गोली के साथ एक फिल्म की फोटो मिलती थी। अच्छा, प्लास्टिक के लिफाफे में। केड़ा डिस्ट्रिक्ट? ये संगरूर अपना मलेरकोटले के अंदर एक मोहल्ला था, तो उसमें तो वो, अब चूरन की गोली तो खाली फोटो का समझ में नहीं आता था कि किया क्या जाए। फिर कई बार शीशे के आगे खड़े होकर उस तरह से थोड़ा ऐसे कर करके भी देखते थे, फिर साथ वाले दोस्त को बुला के भी पूछते थे, अच्छा तू ये वाला लाल शर्ट वाला बन जा, मैं ग्रीन शर्ट वाला हूँ, हम लड़ाई करेंगे। तो इस तरह से एक शुरुआत होती है जो बहुत ही, आपको नहीं पता होता कहाँ लेके जाएगी। आप उस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहते हो, उस वो जो आपने 5-10 पैसे 25 पैसे खर्च करके एक फोटो आपको दे दी गई है, उस फोटो का आप इस्तेमाल करना चाहते हो। फिर वो धीरे धीरे आपको पता चलता है टीवी के जरिए, अरे ये तो उस फिल्म की है, अरे ये तो वो रंगोली में गाना आया था ना, वो वाला एक्टर है ये, और धीरे धीरे एक्टर की पहचान होने लगती है। तो आपको एक आपका रिलेशन बढ़ता है उन चेहरों के साथ, और धीरे धीरे जब रिलेशन बढ़ता है तो आपको पता चलता है कि आपको ये अच्छे लगने लगते हैं, आप उनमें डूबने लगते हैं, बाकी चीजें, बाकी खेल धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, यू नो। और आपको पैसे मिलते हैं, आप वही फोटो खरीदते हैं कि इस बार नहीं खरीदेंगे, फिर ये भी हो जाता है, अच्छा तेरे पास शोले की है, मेरे पास तो दीवार की है, फिर ये चीजें भी हो जाती हैं। तो ऐसे शुरुआत, ऐसे जिंदगी एक, जिसे कहते हैं वो दरिया की तरह अपने आप रास्ता बनाती चलती है और यहाँ पहुँचा देती है एक दिन। प्रतीक, आपके लिए भी था एक्टिंग से रिलेटेड, लाइक अमिताभ बच्चन को देखे, बिकॉज स्कैम 1992 इज लाइक अ चाइल्ड, लाइक द कैरेक्टर हर्षद मेहता जस्ट लाइक एंग्री यंग मैन, उनका स्वैग ऐसा था, एंग्री यंग मैन ऐसा, हाँ, और वो ऐसे एक क्लासेस सिस्टम में अपने आप
कि अपने आप के लिए जगह बनाना चाहते थे जहाँ ही वॉज नेवर वेलकम, ना कोई पूछता ना कोई खड़ा रखता। पर मेरे साथ जो इन्होंने कहा ना, जो कि विजुअलाइजेशन का पावर क्या है या मेक बिलीव वर्ल्ड का पावर क्या है, सो वो मैजिक मैंने पहली बार महसूस किया था जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। स्टेज पे एक छोटी 7 मिनट की स्किट की थी मैंने। अब वो स्कूल में ऐसा था हमारे कि आप सूरत में कि हर महीने वो जो ओपन हाउस जो होता है स्कूल का, उसमें हर एक क्लास में से बच्चों को कुछ ना कुछ करना है। आप चाहे गाना गा लो, चाहे डांस कर लो, चाहे किसी टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो, या कुछ प्ले करना चाहते हो तो, पर आपको सब खुद तैयारी करनी है, रिसर्च से लेके जो भी करना है खुद करना है। अब मैंने कुछ 2-3 छोटे मोटे ना जोक सुने थे मम्मी से, तो मैंने सोचा कि इसको परफॉर्म करते हैं। तो मैंने दोस्त को बोला कि तुम, जैसे आपने बताया ना कि तुम ये करना, तुम वैसे मैंने उसको बोला तू ये डायलॉग बोलना, फिर मैं ना ये बोलूँगा, फिर तुम ये बोलना। हम 3-4 लोगों ने एक 5-7 मिनट का स्किट किया। अब सब मेरे दिमाग में था कि यहाँ ना शायद उनको बहुत मज़ा आएगा, और उसी पॉइंट पे वो हंसे। मुझे लगा यहाँ ना ये पॉइंट बहुत सही है, वहाँ ताली बजाई। तो मुझे लगा यार ये तो मैंने किसी को बोला ही नहीं था, ये तो सिर्फ मेरे दिमाग में था। तो ये ट्रांसलेट कैसे हुआ? अब वो 4th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे लगता था ये कोई मैजिक से कम नहीं है कि मैंने बिना बोले मुझे जहाँ चाहिए था वहाँ उनको हंसा दिया, वहाँ उनसे ताली बजवा दी। एंड दैट मैजिक स्टेड विथ मी टिल टुडे। मुझे लगता है ये कितना कमाल वर्ल्ड है। और तब से धीरे धीरे फिर तो थिएटर करते करते और अब फिल्म करते करते ये विजुअलाइजेशन का पावर इतना कमाल पावर है। तो कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे कई बार हमसे वीओ भी करवाते हैं कोई सीरीज में या फिल्म में कि ऑडियंस को समझ में आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं लगती मुझे कि उन पे कुछ छोड़ते हैं अगर हम। तो आज का जो टाइम है ना, जिसमें क्या है कि हर 30 सेकंड में आपको आपका मोबाइल चाहिए, कोई मैसेज नहीं आया, तो वो उससे निकल के अगर मैं आपको पूरा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ मेरी स्टोरी के साथ, देन आई हैव टू इन्वॉल्व योर विजुअलाइजेशन सो दैट यू आर एंगेज्ड विथ मी। क्या अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो सब कुछ वो जो हम स्पून फीड करना चाहते हैं, कई बार मुझे लगता है कि दैट इज नॉट सर्विंग द पर्पस, इनफैक्ट दैट इज कीपिंग द ऑडियंस अवे फ्रॉम योर स्टोरी। थोड़ा इमोशन कम भी हो गया। हाँ, वो इमोशन कम हो जाता है, दे आर नॉट एंगेज्ड थिएटर में, बिकॉज मैंने सब कुछ इतना आसान कर दिया कि वो फिर किचन में कुछ काटते काटते सुन लेगा तो भी पता चल जाएगा। तो क्यों सुनना, क्यों देखेगा? एम्बिएंट वाचिंग इसलिए देयर हैज बीन लाइक सीरीज हैव बीन मेड कि ऐसी होनी चाहिए कि 2 स्क्रीन का हो रहा है आजकल, कि फोन भी चलाता रहे और पीछे भी चलता रहे। तो शोज लिखे ही इस डायरेक्शन से जा रहे हैं कि हर बार कॉन्टेक्स्ट दिया जाए, हर बार पता होना चाहिए लोगों को कि अगर आप कहीं घूमते हो, कपड़े धोते हो, आपने देख लिया शो, तो भी आपको पता होना चाहिए इसमें क्या हो रहा है। तो शोज इस टाइप से लिखे जा रहे हैं, इनको एम्बिएंट वाचिंग करी जा रही है। मेरे कई सारे दोस्त ना टीवी सीरीज लिखते हैं, टीवी सीरीज, उनका यही लॉजिक है। वो बोलते हैं कि हम लिखते ही ऐसे हैं ताकि वो जब उसके दिमाग में भी जो चल रहा है ना उसको भी साउंड देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे देख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। तो इसलिए उसको लिखा भी वैसे जाता है, परफॉर्म भी वैसे किया जाता है। तो किचन में खड़ा हुआ भी उनका एक, हाँ, उनको पता है कि कुछ मिस नहीं हुआ है, कुछ मिस नहीं हुआ, उनका कुछ मिस ही नहीं होता। प्रीति, फॉर यू ऐसी कोई फिल्म या कोई परफॉर्मेंस? आई थिंक टेकिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, जैसे थिएटर में मेरे लिए हमेशा थिएटर फिल्म बहुत पहले से मेरे लाइफ में प्रेजेंट है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एनकरेज करते थे, और वो अगर मैं कहीं परफॉर्म करने भी जाती तो वो बहुत एक्टिवली आके बैठ के देखते थे, एनकरेज करते थे। बट आई रिमेंबर एज अ किड आई यूज्ड टू टेक अप ऑल द मेल रोल्स बिकॉज आई वाज गुड इन थिएटर, सो एज अ मेन रोल वुड बी अ मेल कैरेक्टर। राजा का रोल है तो मैं मूंछ लगा के और कपड़े पहन के, तो मेन कैरेक्टर होता था तो मुझे मेल रोल मिलता था। तो एंड ऑल द फीमेल कैरेक्टर्स इन माई plays used to be like wives and they had a particular nagging approach, nagging narrative. तो अगर कोई भी मेरी फ्रेंड है तो मुझे ऐसा बचपन में लगता था कि अच्छा मुझे अगर लड़के का रोल मिल रहा है तो मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ, और मेरे फ्रेंड्स को अगर अच्छा इनको फीमेल का रोल मिला है तो मे बी they're just हाँ they've gotten the nagging character. But I think over the years, मतलब मैंने पहले भी मैं बस सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्म्स देखती थी, पर ओवर द years मैंने जब थोड़ा मतलब अलग लैंग्वेजेस की फिल्म देखना शुरू की, तो वन पर्टिकुलर वेरी प्रोमिनेंट फिल्म इन दैट वाज अ फिल्म कॉल्ड अगेन फ्रेंच नेम जेन दिलमैन करके एक फिल्म थी, जेन दिलमैन पूरा एड्रेस है वो हर दिन की एक हाउसवाइफी कहानी है। हाँ, पूरे 3 घंटे की फिल्म है जी। और 3 घंटे में इट्स आई थिंक डिवाइडेड इन 1 hour, 1 hour is 1 day, and we just follow a woman living her life and पूरा इतना स्लो आपको एकदम, मतलब जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि देयर इज वन काइंड ऑफ कंटेंट दैट्स कमिंग वेर यू आर
डिसएंगेज्ड। दिस कंटेंट वाज दैट यू आर एंगेज्ड एंड आपको एक आदत दिलवा रहा है वो फिल्म कि आप इस तरीके से इस फिल्म को देखो। तो फॉर मी इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि अ वुमन इज जस्ट लिविंग हर लाइफ, कुछ नहीं कर रही है, एक्शन नहीं कर रही है, किसी को मुक्का नहीं मार रही है, कुछ नहीं कर रही है, बस खाना बना रही है, नहा रही है, सो रही हैं, कपड़े तैयार कर रही हैं, उससे एक फिल्म बनी है। एंड इनफैक्ट उस फिल्म में एक सीन था जिसमें कि वो नहा रही थी और मैं यूट्यूब पे लिविंग रूम में बैठ के देख रही थी, तो वो नहा रही थी तो उनका चेस्ट विजिबल था। तो मैं पहले थोड़ा अलार्म हो गई कि मम्मा भी देख रही हैं, वो देख के क्या सोचेंगी कि मैं क्या देख रही हूँ। बट over the years I've really appreciated how everything about women, even अभी recent films में All We Imagine Is Light में या फिर संतोष में, I'm seeing women pee because we are so used to men peeing on roads, but then I'm seeing visuals of women peeing on screen and I'm like कितनी सारी चीजें हैं जो औरतें कर सकती हैं और उसको हम इस मीडियम में अगर दिखाएंगे तो it can have such a nice impact. फ्रॉम अ कॉन्ट्रास्ट की थिएटर में मुझे लगता था सिर्फ मेन रोल मेन करते हैं, बट even women doing their ordinary activities can be made. But this must be a very different thing. Girls will be girls. Like from there and now, like playing a female character, also a female character coming of age story. ठीक है. It must be उसका बहुत contrast. पहले आप ऐसे characters कर रही हैं जिसमें आपको मूछें लगानी पड़ती और अभी you have to be. अभी भी मूछें हैं. और अभी adolescence वाली मूछें. हाँ, right. अतुल, आपके लिए is there anything, any film? I think सबके साथ ही होता है, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ नहीं, but I think overall rather than one film or one thing, what I had was दूरदर्शन। तो जहाँ पे 80s में जब मैं बड़ा हो रहा था तो जिस तरह की फिल्में बन रही थी उसका एक एंटीडोट था दूरदर्शन कि अगर आप तमस है या लाइफलाइन है या नुक्कड़ है, क्योंकि फिल्में तो वही बन रही थी जो इरशाद साहब कह रहे हैं, पैंट मतलब गोविंदा की अर्ली वाली, जीते हैं शान से। और आई रिमेंबर हमारे घर में एक बार बहस हुई थी मेरे और मेरे फादर के बीच में, बिकॉज मैं छोटा था और मुझे देखनी थी रजनीकांत जितेंद्र की तमाचा, और उसी हफ्ते में काल चक्र आई थी दिलीप शंकर की जो वो देखना चाह रहे थे। तो उनका ये था कि अगर लेके ही जाना है तो चलो, एंड आई सेड वो अडल्ट फिल्म है, अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन पिक्चर वही जाएगी। बट इवेंचुअली तो मेन स्ट्रीम एक जो थी उस वक्त एक हाइपर मैस्कुलिन जो बन रही थी 80s की, और उसका एक अच्छा एंटीडोट था। जैसे सुधीर मिश्रा की मैं जिंदा हूँ आई थी दूरदर्शन पे, तो दूरदर्शन का आई थिंक एक बहुत प्रभाव रहा टू बैलेंस आउट मेन स्ट्रीम, बिकॉज आप चित्रहार भी देख रहे हो, आप शो थीम भी देख रहे हो, और इलेक्शंस के दौरान जो संसद समाचार आते थे क्योंकि उनको बैठा के रखने लोगों को, तो वो बीच में फिल्में चलाते थे। तो उस दौरान मैंने बंदिनी देखी, विच आई थिंक लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी। एंड शो थीम में फिर उसका एक एनालिसिस था, अशोक मेहता ने किया था जो बड़े सिनेमाटोग्राफर थे, कि हाउ दैट वन सीन वेयर शी पॉइजन्स her lover's wife, you know, how Bimal Roy shot it and how Kamal Bose shot it, and उसमें lighting का क्या impact है, sound का क्या impact है। तो I think वो एक प्रभाव था जो मुझे कॉन्शियसली रियलाइज हुआ कि जब हम छोटे थे, मैंने तो पढ़ना शुरू कर दिया था, छोटा भाई तो बाद में आता है ना स्कूल में, तो उसकी जिद होती थी मुझे कॉमिक पढ़ के सुनाओ जो किराए पे आती थी 50 पैसे की, तो मैं पढ़ के सुना रहा था, एंड आई वाज एडिंग साउंड इफेक्ट्स टू द एक्शन सीन। तो मेरी बुआ बैठी थी, कह रही ये धम धम धड़ाम धड़ाम धूम धूम भी लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूँ एक्शन सीन में। सो दैट वाज आई थिंक व्हाट वी कॉल साउंड डिजाइन नाउ। बट फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली फेल्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ मीडियम वाज, तो मेरे को आई थिंक जब मेरे 10th के एग्जाम हुए थे या 9th के हुए थे, उसके इनाम में मेरे दादाजी ने एक डबल कैसेट डेक लेकर दिया था। तो मैं माचिस की कैसेट लाया था, और उसके एक साइड में हरिहरन का एक गाना है तुम गए सब गए, और दूसरे साइड पे लता जी का है तुम गए सब गए। तो मैंने खाली कैसेट लिया, एंड फ्रॉम दैट सोलो 2 परफॉर्मेंसेस आई एडिटेड इनटू अ डुएट। मतलब वो बहुत मैन्युअली करना पड़ता था, पॉज करके कहाँ पे कौन सी बीट पे, और एक दो बार खराब हुआ तो फिर मैंने वापस उसी के ऊपर करके। But that was the first time I felt in control of the medium, that I can take something existing and adapt it into something। तो वो अब मुझे पता नहीं किसी और को सुनने में कैसा लगता है, बट मुझे वो डुएट सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने लिखा नहीं, किसी ने बनाया नहीं, पर ये है। तो आई गेस ऐसी ही शुरुआत जैसी सबकी होती है, किसी को चूरन की गोली में वो फोटोज मिलती हैं। मुझे एक बार कहीं पे एक छोटा सा फिल्म का टुकड़ा मिल गया था किसी थिएटर के बाहर, तो मैं पलंग के नीचे उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अंधेरे में जब लाइट चली जाती थी विद अ टॉर्च। सो आई थिंक बिकॉज मीडियम का अभाव था, दूरदर्शन या सिनेमा हॉल ही था, तो हमें मैजिकल उसका एक एहसास बहुत था, किसी भी यू नो मूविंग इमेज का या स्टिल इमेज का भी, नॉवेल्स में भी इलस्ट्रेशन ढूंढते थे। तो आई थिंक वो हमारे लिए शायद एक बूंद था कि कमी है, तो इसलिए यू नो जो कहते हैं ना कि भाव जो है वो अभाव में निकलता है, तो वो उस तरह से निकलने शुरू हुए थे।
हाँ, मुझे कृषि दर्शन पसंद था क्योंकि बिल्कुल। उसमें आउटडोर दिखाते थे। कुछ लोकेशन देखने से को बाहर मिलती जाता था थी। दूरदर्शन, वरना वो दूरदूरदर्शन के ज्यादातर चीजें वो सब उनका कुछ वो अंदर ही एक- होता था हाँ, एक्चुअली। एक दूरदर्शन ही- की ये सारी यादें बहुत एक ही बहुत सेट स्ट्रांग था, है। वो सेट में बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके। बट आई थिंक उस वक्त जो था, जैसे अब है ना कि कुछ फिल्म मेकर्स जो फिल्में नहीं बना पा रहे और ओटीटी पे चांस मिल जाता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उस वक्त भी जैसे गोविंद जी तमस बना रहे हैं, सुधीर मिश्रा वो जो बोनाफाइड फिल्में बना के आ रहे थे, बट आई थिंक 80s में एक ड्राइड अप because of the economy and whatever was happening in the industry and in country in general, was a very tough phase because of Punjab militancy and Kashmir militancy and all those things and the foreign reserves. So I think जो हमने 70s में मिस किया, क्योंकि तब मैं था नहीं कि अर्थ सत्य आप सिनेमा हॉल में देख लिया वो जो एक्सपोजर उससे मिला, और उनकी जो लोकेशन शूटिंग थी, जैसे लाइफलाइन वाज शॉट इन एन एक्चुअल हॉस्पिटल, तमस वाज वेरी वेल शॉट, एंड आई थिंक जो चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का चाणक्य था, उसके इनिशियल कुछ एपिसोड बहुत अच्छे उन्होंने फिल्म पे शूट किए। तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही। ऑफ कोर्स हम लोग बुनियाद, यू नो, एंड आई थिंक एक अगर आप मेरे केस में अगर आप ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिन्होंने पार्टीशन देखा है, तो वो एक सेंस ऑफ नैरेटिव है, क्योंकि वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का फ्री टाइम ही कहानियाँ सुनाना है कि साढ़े कोल पाकिस्तान की सी, यू नो, सो that becomes your first imagination. Now you have to imagine Pakistan, you have to imagine Pindadan Khan and Jhelum and everything. आप कभी गए नहीं, and to imagine it as a pre-partition, you know, a cosmopolitan Lahore or whatever. So I think it's a make. I think it's, you can't pinpoint one thing. Yeah. It's just a confluence of a lot of things. Yeah. But now जैसे बोल रहे हैं कि अब पहले अभाव था, now there is so much of media that is there, and also that I feel like everything is being curated for social media. Yeah. ठीक है, like films भी vertical में हो, ठीक है, उस टाइप से aspect ratio का हो रहा है। उसके अलावा I feel like I want to ask the two lyricists here, आपके ऊपर प्रेशर होता है कभी ऐसे लिरिक लिखने का जो रील पे चल जाए? Is there a pressure? Because music का what I've been seeing, जब OTT आना शुरू हुआ तो म्यूजिक ड्यूरिंग कोविड व्हेन इट स्टार्टेड, एट दैट टाइम म्यूजिक का थोड़ा सा नीड कम हो गया था। पीपल वाचिंग मोर सीरीज, फिल्म्स, गाने कम होते थे, थिएटर में कोई जा नहीं सकता। उसके बाद देयर सम एल्बम्स दैट केम, कला की एल्बम आई थी वहाँ पे, तो कुछ एल्बम्स आई जिनका था, पर उसके अलावा म्यूजिक अब जब आप देखते हैं लाइक आफ्टर कोविड व्हाटएवर, हैज द नीड फॉर गुड म्यूजिक, सोलफुल लिरिक्स reached that level pre-COVID, or like is it now? Because now we see music mostly, even a Sajni Ray from Lapata Ladies gets more and more popular because of reel पे आ गया उसके बाद. So is it there, like are you being told कि okay you should write in certain way, जिससे maybe, or music producers want to make music in a certain way that ये reel पे trending हो? मेरे पास, मैं बहुत कम एल्बम करता हूँ, मैं साल में 1 या 2 एल्बम करता हूँ, वो भी वो करता हूँ जहाँ पे स्क्रिप्ट में मुझे मजा आए, जानता हूँ मैं कौन है डायरेक्टर, कौन है कंपोजर, सो आई एम नॉट लाइक अ फुल टाइम लिरिसिस्ट। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ फुल टाइम एनीथिंग, ना लिरिक्स राइटर, ना स्क्रीन राइटर, ना स्टैंड अप कॉमेडियन, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि मैं कोई प्रोजेक्ट इसलिए करूं क्योंकि अब हो गए 3 महीने, कोई एल्बम आना चाहिए, तो वो होता नहीं मेरे साथ। तो इसलिए अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है, ना ही पास्ट में भी कभी भी मार्केट का प्रेशर मुझे दिया गया है या मैंने लिया है। इनफैक्ट और जो गाने सबसे ज़्यादा चले हैं रील्स पे या सोशल मीडिया पे, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो जब वो बिना किसी प्रेशर के लिखे गए हैं। ये भी नहीं कि कोई अप्रूव कर रहा है, जैसे कि कला का गाना अगर वो शौक है, वो शौक तो वो आधे पौने घंटे में लिखा था और वो अप्रूव हो गया, और फिर मुझे ही शर्म आई कि यार आधे घंटे में लिखा हुआ अप्रूव हो गया, ये मेरे को एक और लिख देना चाहिए। फिर मैंने एक और लिख के भेजा अन्विता को, डायरेक्टर जो हैं, जो बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मुझे लगा दोस्ती में अप्रूव कर रही है या क्या है पता नहीं, तो मैं एक और लिख देता हूँ। फिर उसमें से भी एक अंतरा ले लिया गया, तो 3 अंतरे का गाना बन गया, जो कि आजकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आजकल 1 अंतरे पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वही वो 2.5 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनता है, उस हिसाब से गाने लिखे जाते हैं। 2 अंतरे तो बहुत रेयर होते हैं, इसमें 3 थे हमारे ओरिजिनल। तो ये जो प्रेशर, अब शौक चला, हमको बिल्कुल नहीं पता था वो चलेगा या क्या होगा। या आप मसान के गाने देख लें, वो तो जब फिल्म बन रही थी और जब हम म्यूजिक बना रहे थे, मुझे तो
मतलब ऑलमोस्ट भरोसा था कि ये फिल्म न कभी बाहर आएगी, न कोई देखेगा, ये हम घर पे बैठ के देखेंगे, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई मतलब कोई बाहर ही नहीं निकालने वाला है इस फिल्म को। सो उसके गाने या फिर जो भी मतलब ज्यादातर वो हैं जो बिना प्रेशर, या मोह मोह के धागे, वो बिल्कुल एकदम बिना प्रेशर के बनाया गया गाना है कि जिसमें पता नहीं था हमको कि हाँ क्या होने वाला है या क्या किस तरह से मार्केट क्या है, क्योंकि प्रीएम्प्टिंग द मार्केट और प्रीएम्प्टिंग अ होल जनरेशन ऑफ पीपल, इट्स स्टूपिड, पीपल बिलीव दे डू इट, बट वो जब लगता है तुक्का तो लग जाता है, नहीं लगता है, लग गया तो आप बोल दो अरे मैंने तो सोच के किया था, पता है मैंने ये सोच के शब्द डाले थे इसलिए चल गया। ऐसा नहीं होता है, होता नहीं है। इट्स अ स्कैम व्हिच पीपल हैव बॉट इनटू एंड इट सर्व्स सम पीपल। सो डू यू फील द सेम विशर? आई डोंट थिंक कि आप ऐसा सोशल मीडिया सोच के लिखते हो कि ओके अभी सोशल मीडिया पे इन्होंने 45 सेकंड की रील कर दी कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है। आप अपने तरीके से गाना लिखते हो और मोर देन दैट आपको करेक्टर जस्टिफाई करना होता है। उस टाइम पे ना रील होती है, ना सोशल मीडिया होता है, ना कुछ होता है। मैं अगर अपनी बात करूं, वो भले वो रॉक स्टार हो, भले वो कोई और, वो मैं करेक्टर क्या कहना चाह रहा है मैं वो बात कह पा रहा हूँ। वो उसके गाने जैसा मैं अक्सर कहता हूँ 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक होते हैं कि जब आप बहुत सारे मुतासिर करने वाले, इम्प्रेस करने वाले वर्ड्स ढूंढ लेते हैं और उनको मुखड़े में सारे उस सबको डाल देते हैं, तो आदमी कहता है ओ तेरी क्या गाना लिखा, डर जाता है सुनने वाला थोड़ा सा। एक होता है कि आपने वो पर्टिकुलर थॉट पकड़ा कि यार ये आदमी ये कहना चाह रहा है और इस बात को ऐसे ही कहा जा सकता है। अगर वो उसकी डायलॉग्स की लैंग्वेज है एक, तो अचानक से वो गाने में जाके तो फिर वो मिसवाक का इस्तेमाल नहीं करने लगेगा ना, अगर वो कॉलगेट कर रहा है तो है ना। तो वो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। हाँ ये है कि सोशल मीडिया आपके कई बार पुराने गानों को भी ले आता है, जैसे सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा। उस टाइम पे आक्रोश पिक्चर का गाना है ये, उस टाइम पे ये गाना सुना नहीं सुना आया, ठीक रहा था गाना, पर वो अचानक से दोबारा से लौट के आया तो वो चलने लगा। और डीजे स्नेक ने पटाखा गुड्डी गा दिया तो वो गाना कहीं और 8-10 साल के बाद वो कहीं और पहुंच गया। ये बात सही है, पर जिंदा गाना मुझे लगता है जब आपका होता है ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाता है वापस। एक बार आप ये सोच के नहीं बनाते कि अच्छा अगर मैं 1 मिनट का मुखड़ा लिखूंगा तो ऐसा होगा, कोई प्रेशर नहीं होता। वो आपको करेक्टर जस्टिफाई करना होता है, आपको कंपोजिशन जस्टिफाई करनी होती है। एज ए लिरिसिस्ट आप उस कंपोजिशन को एक स्टेप या आधा स्टेप कैसे आगे ले जाते हो, दैट्स इट। Pratik, Varun just said that, you know, like he's friends with Anvita and Hamisha, like I think you prefer working with people you have a personal connect with. It just makes work better that way. Do you feel that is also important to have a personal connect with the person? Like एक formal वो है, but अगर personal connect जब होता है तो it's better. Like you are more, because as an actor you have to be more vulnerable to your director and everything. If that comfort is there, does it make things better for you? Yeah, obviously we are all human beings. And ये personal connect से क्या होता है, because most of the time with every director that we work with, not all the directors can put their thoughts in correct words. Okay. So the more I understand the director without him speaking anything, him or her speaking anything, it is better that it helps me go to that first pure thought. Yeah. जितना मैं नजदीक जा पाऊँ. Yeah. बाकी वो लॉस इन ट्रांजिशन होगा ही होगा, क्योंकि राइटर के दिमाग से डायरेक्टर के दिमाग में आया है, वहां से मुझ तक पहुंचना है. अगर राइटर डायरेक्टर एक ही आदमी है तो बात अलग है कि उनका बेसिक थॉट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेम है, पर ये एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जो जाने की बात है उसका कोई स्टैंडर्ड तरीका होता नहीं है. और बहुत सारे डायरेक्टर्स मैंने जिनके साथ काम किया ऐसा है कि मतलब वो शायद करेक्ट वर्ड बोल भी नहीं पाते हैं. Okay. कितनी बार आप किसी भी एक्टर से पूछिए, नहीं यार थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा क्या, वी आर नॉट गेटिंग दैट, बट वो क्या, वो मुझे अगर समझना है तो इफ आई नो हिम और हर एज पर्सन, इट हेल्प्स मी कि मैं जितना जल्दी उनको दूसरा ऑप्शन दे पाऊँ कि जब ये ऐसे रिएक्ट करते हैं तो वो क्या चाहते हैं. वो मुझे गैस करना पड़ता है हर बार, एंड इनफैक्ट इट्स द सेम विद एवरीवन. सो जरूरी नहीं है कि आप एक ही आदमी के साथ काम करोगे, मतलब बहुत अलग अलग लोगों के साथ काम करना है. सो आई गेस द वे आई डू इज कि जिनके भी साथ काम कर रहा हूँ, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद देम टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक. तो इसलिए ज़्यादातर तो ये होता है कि जैसे कोई नई स्क्रिप्ट आती है तो आई वांट टू हैव अ नरेशन फ्रॉम अ डायरेक्टर. Okay.
क्योंकि वो जो लिखा है उसके ऊपर जो कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं ना नरेशन के टाइम पे, दैट टेल्स मी हाउ दे विजुअलाइज इट. स्टोरी बिकम्स मोर क्लियर. हाँ, स्टोरी और उनका विजुअलाइजेशन. उनका विजुअलाइजेशन. क्योंकि जैसे आता है ना कि यहाँ पर इस सीन में वो ऐसा है वैसा है, लिखा हुआ नहीं है, बट द वे दे से, द वे दे नरेट यू, so that helps understand how they think about particular emotion in this sequence. So मतलब वो बहुत important हो जाता है. Preeti, this is your first feature film. I think you have worked before on shorts or something. Yeah. Like how Pratik was saying, I think first film के लिए तो it is even more required that you have a comfortable space, you have a personal connect and everything. And there are a lot of scenes I've seen the film Girls Will Be Girls where you need to be in a comfortable space with people around. How was that experience for you? I think for me, if I'm working with a friend, it becomes difficult to communicate. So I like having a little, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे उनका कोई लैंग्वेज समझ, मतलब वो आ जाती है कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना कर दूं या फिर उनको हर्ट ना कर दूं कि नहीं यार, क्योंकि इससे पहले जो शॉर्ट फिल्म्स किए थे उसमें कुछ दोस्तों के साथ काम किया था, तो समटाइम्स इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्वे बिकॉज इट्स अ पर्सनल बॉन्ड. But with girls, everything was a fresh start, fresh beginning, and I enjoyed the process of familiarizing with someone I'm not familiar with. And I was very fortunate because Shuchi is a very sensitive director, and I think conventionally I see like an actor and a director's का जो bond होता है वो एक parent child का bond होता है. मैं ideally मैं सब कुछ surrender कर देना चाहूँगी because आप दोस्त के साथ काम करते हो तो शायद आपको कभी-कभी लगता है कि I can also collaborate, which ideally should be कि आप collaborate करो director के साथ, but only when the director is okay in that way of working. Maybe after a few years of working as an actor, when I get that sensibility myself, what I feel could be good for the film, then I'd want to have more of an equal sharing. But with Shuchi's case, she did make me feel like an equal. जो भले हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ा था उसमें जो भी लिखा था, कभी भी कोई कंपल्शन नहीं था, क्योंकि कुछ सीन्स थे जिनमें एक पर्टिकुलर एंडिंग थी, एक इमोशनैलिटी के साथ एक एंडिंग थी कि लेट्स से आपको रोना है, तो मैं जब वो पढ़ती हूँ तो मैं अरे यार इसको भी रोना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पूरा दिन, मेरे को कोई मुझसे बात मत करना, मेरे को ये आज रोना है, मुझे कोई बात मत करना मेरे से. तो उस पॉइंट पे जाने का एक प्रेशर रहता है. पर शुचि के साथ काम करके ऐसा था कि हम लोग अप्रोच करते थे सीन को, और अगर इमोशनली नहीं जा पाते तो कहते थे कि अगर लिखा भी हुआ है और तुम नहीं जा पा रही हो, तुम कहीं और जा रही हो तो जाओ. और हम बहुत सारे टेक्स भी करते थे, लाइक 13-14 टेक्स तक जाता था, और वो जो एक 1 टेक एक्टर का वो जो इनहिबिशन था, इमेज था, वो सब खत्म हो गया था पहले दिन के शूट में ही. Is that a thing? 1 take actor, like is it a big thing कि नहीं, ये पर ये ना it feeds into your ego for sure. कि एक टेक में, पर ये जरूरी नहीं है. I mean that is not something that you strive to achieve. ऐसा उसमें कुछ पा लेने जैसा या गवा देने जैसा कुछ नहीं होता. इनफैक्ट अभी तो लगता है कि एक टेक में हो गया, अब तो मतलब इट्स गॉन नाउ, आई कांट फिक्स एनीथिंग अबाउट इट. देयर शुड बी मोर टेक्स सो दैट आई एम फीलिंग ओके कि दिस सीन हैज बीन अप्रोच्ड इन अ मल्टीपल वेज. एंड अनदर थिंग, आई थिंक शुचि इज वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन सेट. एंड कभी भी मुझे एक आई थिंक फिल्म शूट के दौरान बीच में एक पॉइंट आया था जब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो वो ओपन स्पेस भी उन्होंने दिया था कि यू कैन कम एंड एक्सप्रेस. तो vulnerable होने के लिए भी there was a lot of scope, no judgments around, you know, कि I'm getting pressurized about the performance or anything. अगर vulnerable हो रहे हैं तो भी there were ways to, you know, handle it. Yeah. Atul, same for you, like collaborations के साथ personal connect होना is of utmost importance, or like how is it? No, not at all. No? It helps, like it helped me in Jubilee when I was writing for Vikram. But I was working with Apar Ishwaq simultaneously for the first time on Berlin. And same when I did Aurangzeb, whether I was working with Arjun or Rishi Kapoor. I think it's a mix of both. What Pratik said is very important, that you find your articulation. So if you can't articulate it to the person, whether she or he is your friend or not a friend, it's difficult for them to execute that job. Because the first and foremost job, I think, of the director is to articulate to different departments. कि आप चाह क्या रहे हो, तो और वो वेग ना रहे, यार थोड़ा सा जादू कर दे, तो वो कहाँ से करेगा बेचारा. Oh my God. So I think once you have that, and it is case specific, जो आपके moods and temperaments हैं वो प्रतीक के नहीं होंगे, और जो प्रतीक के हैं वो वरुण के नहीं होंगे. और
उस दिन आप सेट पे क्या मूड लेकर आ रहे हो, यू नो, इनकी बिल्ली ने सुबह से खाना नहीं खाया, ये परेशान है पर इनको शॉट देना है। तो वो उस 10 सेकंड में जब मैं इनसे सुबह वैन में मिलूंगा, जब लाइन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो इनके मुंह से निकल जाएगा, जस्ट गिव मी 5 seconds, आई विल जस्ट सी वेदर माय मेड has tended to my cat or not, you know. That defines the day, you know. How can I get the work done but be sensitive to that as well, you know. Like there are a lot of things that don't get talked about. मैं एक बार एक गाना शूट कर रहा था, मैं फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत प्रेशर था कि उसी टाइम पे करना है क्योंकि एक्टर के डेट्स नहीं थे. नाउ ऑन द सेम डे अराउंड द सेम टाइम the actress who was supposed to do most of the dance got her periods and she requested can we postpone. तो सब बैठे, सबने अग्री भी किया पोस्टपोन करते हैं. तो एक्टर ने जो लीड था उसने कहा कि मेरी तो 1 महीने के बाद डेट्स हैं. तो सब अग्री हो गए. 1 महीने बाद फिर किसी को स्ट्राइक हुआ, अगले महीने फिर पीरियड्स आ जाएंगे, यू नो, इसका क्या करेंगे. तो you have to then accommodate within these things that get the work done. It's very tough for women and all that, you know. You see a song for 5 minutes, 3 मिनट रह गए आज, बट उसकी जो 4 दिन की शूटिंग है, आप जिम करते हैं 30 मिनट आपके पैर थक जाते हैं, वहाँ उनको 8 घंटे नाचना है लगातार, यू नो, पैर सोर हो जाते हैं, सब कुछ होता है. बट the only thing that the director can do in such a scenario is make that pain जो उनकी पर्सनल लाइफ की चल रही है और जो उस दिन के सेट की वो जो थकान और दर्द है उसको आसान कर दे, और अपने शब्द इतने क्लियर रखे कि भाई उसको समझ में आ जाए उसको क्या करना है, रादर देन के कुछ कर. Varun, this makes me think All India Rank, when I saw the film, there's one particular thing about it that film, मुझे, आप स्टोरी तो IIT है, कमिंग ऑफ एज है, पर मुझे एक शब्द में तो कंट्रोल और लूजिंग कंट्रोल के बारे में फिल्म था कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली इज दिस a fight for them to just have control in their lives. This is like your first feature directorial. कितना set control में था? First day कैसा था? Like the first day when you went, like was it something that you had seen before कि यार ये कुछ नया नहीं है, या फिर it was like a responsibility now as a director? तो apex level responsibility होती है. नहीं, बहुत देखिए क्या किया ना, मैंने एक कोशिश की जो मैंने मसान से सीखा. So thanks to my team at मसान कि भाई मैं फर्स्ट टाइम राइटर था, मेरी पहली फिल्म थी एज फुल लाइक स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायलॉग सब लिख रहा हूँ मैं. सो मसान में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम सिनेमेटोग्राफर, फर्स्ट टाइम एडिटर, फर्स्ट टाइम एक्टर्स. तो मैंने इसमें यही कोशिश की कि वन आई गेट टू वर्क विद फर्स्ट टाइमर्स who are who one come with a very clear sense of purpose कि हाँ हम सब मिल के ये बना रहे हैं. there is no hierarchy on the sets. first time cinematographer थी अर्चना धांगरेकर, first time production designer थी प्राची देशपांडे, first time composers थे मयूक मैनाक, first time actors थे बोधिसत्व शर्मा और समता सुदीक्षा, मतलब शिवाजी थी उसमें, शशि भूषण थे उसमें, गीता जी थी, लेकिन मेन जो हमारे जो किरदार थे वो सब फर्स्ट टाइमर थे. So there was that energy which was very very important for me, that there is no hierarchy on the sets. We all know कि हमारी पहली फिल्म है, हम साथ में एक खुद से हमने जोड़ के एक कश्ती बनाई है, उसमें देखते हैं कहाँ तक जाएगी. So that was one thing. Second was I wanted it to be a film about our sense of purpose and control in life. तो वो जो शुरू से मैंने इसके लिए जो भी कोलैबोरेटर आए इस फिल्म पे, they all were nerds in some sense. Okay. तो जब वो बात हो रही थी मल्टीपल सिनेमेटोग्राफर से, मल्टीपल प्रोडक्शन डिजाइनर से, तो एक चीज जो मैं देख रहा था कि वाइब उनसे मैच हो रहा है जो मेरी तरह थोड़े से नर्डी हैं. And the film is about someone wanting to be nerdy, is a nerd, but the family is wanting him to monetize that nerdiness. Yeah. So that space I wanted to figure out कि जहाँ पे आपको जो भी आपके अंदर के अजीब अजीब कीड़े हैं वो बस वो हैं, वो उतना ही बहुत है. फिल्म का मेरा मतलब मुद्दा ये था कि वो बस उतना ही बहुत है कि you are curious about the world. Why do you need to convert that into a profession which your family wants or which the world wants or which the मोहल्ला wants कि भाई इस मोहल्ले में ये लड़का बड़ा पढ़ने में अच्छा है, इसको IIT भेज दो, या ये पढ़ने में अच्छा है, इसको डॉक्टर ही बनना है, वरना ये बर्बाद है, इसका जिंदगी का जो इसको सुपर पावर मिली है ये वेस्ट कर रहा है उसको. तो वो चीज मैं चाहता था. तो उस तरह से वी वर्क विद, आई मीन आवर होल टीम वाज वेरी वेरी कनेक्टेड. तो वो कभी भी वो वाली दिक्कत नहीं आई कि कहीं
किसी से झगड़ा हो रहा हो सेट पे या ईगो क्लैश हो रहे हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस आते थे, वो तो क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है, बट अदरवाइज इट वाज अ वेरी स्मूथ शूट। जब शूट खत्म हुई, जिस दिन हमारा बड़ा पहला शेड्यूल खत्म हुआ, सभी रो रहे थे। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक विदाई हो रही है। वो वाला थोड़ा सा ज्यादा ही इमोशनल कनेक्ट हो गया था। Ishad, Varun is talking about like certain things which like एक पर्पस होता है इसको मोनेटाइज करने का। किसी का कोई टैलेंट होता है, वो कहते हैं कि यार लाइक इफ समबडी इज गुड सिंगर, इज लाइक तू आज तो और आसान हो गया, इंस्टाग्राम पे डाल दो, उधर डाल दो। इज देयर समथिंग दैट, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर ऑल ऑफ यू, के व्हिच इज मे बी अपार्ट फ्रॉम लाइक lyric writing or acting or direction, that you guys do just for yourself and not for to show anybody, or not to उसकी applause नहीं चाहिए, सिर्फ अपने लिए करना है, उसको मोनेटाइज नहीं करना। इज देयर एनीथिंग यू डू? यार देयर आर, मुझे लगता है हर एक इंसान करता है। प्रोफेशन एक चीज होती है, यू नो, आपके शौक दूसरी चीज होती है। हर शौक आपका प्रोफेशनल नहीं हो सकता, यू नो। अगर मैं घर पे मान लीजिए पियानो भी बजाता हूँ और बहुत बेसुरा बजाता हूँ, तो वो मैं अपने लिए बजा रहा हूँ। अगर मैं सुर में बजाऊं तो मैं लोगों को सुनाऊं। राइट। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप अपने लिए करते हैं। मान लीजिए मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो मैं बहुत सारी कहानियां लिखता हूँ, बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ, और वहाँ कविताएं छपती हैं जो मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत ही, वरुण के अलावा एक दो लोग ही होंगे जो जानते होंगे कि अच्छा इस नाम की भी कोई मैगजीन है। बताएं जरा। साइकिल नाम की साइकिल, मुझे लगा हंस का नाम लेंगे। नहीं, हंस का नहीं, पहल आपने नहीं सुना होगा। जी, मैंने नहीं सुना। हिंदी की आज तक की सबसे बेहतरीन मैगजीन अगर मेरे से पूछा जाए, सबसे बेहतरीन मैगजीन, और पिछले 40 साल से छपी वो मैगजीन, 40 साल छपी, और पहल 40 साल में सिर्फ 125 एडिशन छपे उसके, क्योंकि उसका वो स्टैंडर्ड था मैगजीन का। मतलब वो वैसे लोग इन्वॉल्व थे उसमें। सो वो मेरा वो काम है। आप ऐसा कह लो, जैसे मैंने एक प्ले लिखा बोलती दीवारें, तो उसका पहला शो श्री राम रेपेट्री में हुआ, और मैंने उसकी भूमिका की पहली लाइन ये लिखी कि ये मेरा रोमांटिक प्ले है, एक्चुअली ये मेरी उस नकली रोमांस की फ्रस्ट्रेशन से निकला है जो मैं रोज जिसको झेलता हूँ, कि हर बार पहली बार ही मोहब्बत हो रही है, हर बार दिल टूट रहा है, हर बार वही सिचुएशन है। एक्चुअली मोहब्बत है क्या? मतलब वो जो दिखाई दे रहा है वही तो हम कह रहे हैं कि देखिए जी ये मोहब्बत है, वो तो कुछ और होगी ना यार। अगर इतनी ही आसान होती और इतना ही सबको पता होता तो सब मोहब्बत ही कर रहे होते ना। वेरी वेल सेड। तो अगर वो है क्या चीज, तो ऐसी बहुत सारी, खैर कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने लिए करते हैं, जो प्रोफेशनल हो भी नहीं सकती और की भी नहीं। जैसे मुझे चेस खेलने का बहुत शौक है, पर मैं प्रोफेशनल थोड़े हूँ, मैं विश्वनाथन आनंद नहीं बन सकता। मुझे अपने दोस्तों के साथ, अच्छा तुम्हें आता है यार, चल बैठते हैं गेम लगाते हैं। दैट इज, यू नो, एवरी हॉबी कांट बी योर प्रोफेशन। Pratik, you had a corporate job and then you used to do theater after that. I want to ask you, when everybody starts off, like when you want to do something creative, but and if you're for example in a city like Bombay, जहाँ पे आपको हर दिन आपको अपना रेंट भी भरना है और आपको डेली का भी चलाना है, I want to ask you and I want to open this question to all of you, 2 jobs में जगल करना, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, कितना टफ होता है? बिकॉज आई थिंक यूज टू गो, रात में आप जाते थे और उसके बाद तो कितना मेंटल स्ट्रेस, और ऐसा भी होता है क्या कि यू नो यू डू अ जॉब एंड यू डूइंग दिस फॉर मनी एंड देन यू डू अनदर, और ये जॉब सफर करने लगती है जो मनी के लिए, बिकॉज आपको अपना पैशन वाली जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? नहीं, सो डिफिकल्ट से ज़्यादा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो बहुत फुलफिलिंग था ये। और मेरा ऐसा था कि वो दोनों जगह इक्वल पैशन था। इंजीनियरिंग भी मैंने किसी के चांटे मारने से या किसी के डांटने से नहीं की थी, मुझे करनी थी इसलिए मैंने की थी। डिप्लोमा के बाद मुझे ग्रेजुएशन भी करनी थी, तो इट वाज माय पैशन। और मुझे लकीली उसी फील्ड में ऐसा काम करने मिल रहा था जो बहुत, मतलब मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का मिला जुला एक प्रोफाइल बन रहा था मेरा, which was sort after कुछ सेटअप कर रहे थे। no, वो सब तो सन्ड्री काम यहाँ टिकने के लिए किए। तब मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में फ्रीलांस कंसल्टेंट हुआ करता था। सो 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में जब गैप होता था
जब ना कोई प्ले का शो मिल रहा है, ना कोई टीवी में तो जितने ऑडिशन दिए कभी किसी ने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो तब वो ऐसा था कि यार अब अगले 3 महीने तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो रेंट कैसे निकालेंगे। उस बीच में बहुत सारे अलग अलग काम किए मैंने। वो कूलिंग टावर, फैन कंट्रोल सिस्टम बेच रहा था, फिर मैंने वाटर टैंक क्लीनिंग के एक सेटअप तैयार किया था, 4 लोगों को ट्रेन करके, सबमर्सिबल पंप लेके, वाटर स्प्रे जेट लेके, फिर मोबाइल के टावर सेट किए कुछ 13 साइट पे। उसके बाद 2008 वाज अ टाइम मेरा, आई थॉट कि यार ये कुछ बन नहीं रहा है यहाँ टिकने के लिए। एंड बाय देन आई हैड फुल फ्लेजेड फैमिली, मतलब पेरेंट्स भी आ गए थे सूरत से यहाँ, मैं, मेरा छोटा भाई, आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड। तब मैंने फुल फ्लेजेड जॉब ले लिया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब वो प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा क्वालिटी से लेके रिलेटेड प्रोफाइल था, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, मैन पावर प्लानिंग, दिस आर माई सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पर भी प्रोफाइल ऐसा था कि यार ऐसा नहीं कि मैं जाके सिर्फ वो दिन भरने का काम कर रहा हूँ कि फाइल देखी, टाइप किया, निकल लिए। तो यू आर आंसरेबल। और थिएटर में भी ऐसा है कि मांग मांग के काम लेते थे कि सर मैं कर लूँगा, आप दीजिए। नहीं, टाइम कैसे दोगे जॉब के साथ? सुबह आऊँगा, तो मैं सुबह 5:30 से रिहर्सल करता था, 5:30 से 7:30 जैसे, देन यू गो टू योर ऑफिस, और रात के 9:30 बजे के बाद की रिहर्सल। तो अब मेरे लिए ऐसा था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एट बोथ द प्लेसेस। ओके, क्योंकि ऑफिस वालों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पैशन है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, कंटिन्यू, बट देन आई नीड व्हाट आई नीड। और थिएटर में भी ऐसा है कि हाँ तुम बहुत काम करके आए होंगे, बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए होंगे, साइट विजिट किया होगा, बट हियर वी हैव अ शो टुमारो, सो रिहर्सल में आई नीड यू 110%। तो हमने बचपन से जो जाना है ना कि यार सब जगह 3-4 घोड़ों पे बैठोगे तो गिर ही जाओगे, एक के भी नहीं रहोगे, बट इट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। आपका जो बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है ना, वो 4 घोड़े पे सवार होके, वो अलग हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि सडनली मेरी प्रोडक्टिविटी 2 गुना बढ़ गई, 200 गुना हो गई। मैं दोनों जगह पर काम कर पा रहा था। सिर्फ ये था कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है सिटी लाइक मुंबई, दैट इज वेरी स्ट्रेनियस। क्योंकि काम दोनों जगह पर 8-8 घंटे भले कर लो, पर वो जो ट्रैवल टाइम सडनली जो कि 1 घंटा ही होना चाहिए, वो जो 4 घंटा हो जाता था, दैट वाज टेकिंग टाइम। पर उसमें इनोवेशन मिला। फिर वो अभाव से जो भाव की बात आप कर रहे थे, उसमें वही हुआ। जैसे नया प्ले मिलता था तो मैं ट्रेन में सफर इसलिए करता था कि सफर के दौरान आप लाइन से रेडी रहो, ताकि जब आप रिहर्सल पे जाओ तो यू आर रेडी। किसी का टाइम और नहीं खा रहा मैं, क्योंकि मेरी वजह से वैसे ही वो बेचारे 9:30 का रिहर्सल रखते थे जब सबका घर जाके सो जाने का टाइम होता था। पर तो मुझे इसमें मजा ये आया कि बहुत कुछ जानने सीखने मिला। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एज एन एक्टर बहुत कुछ मिला है, और एज एन एक्टर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे बहुत कुछ करने मिला है कि मेरी बात लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। खास करके जब वो प्रेजेंटेशन हम देते थे, अब एक नया आइडिया है जो मैं ऐसे स्टॉलवर्ड्स को बेच रहा हूँ कॉर्पोरेट में, जिन्होंने उस इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी निकाली। तो उनका पहला रिएक्शन होता था कि बेटा हमने बहुत देखा है, यू डोंट नो दिस। अब उन तक आपका आइडिया उनके ईगो को टच किए बिना कैसे पहुंचाना है, दैट आई गेस दैट वी हैव लर्नड इन दिस क्रिएटिव प्रोसेस कि हाउ डू यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सिमिलरली वहाँ का एक डिसिप्लिन जो था कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, दैट हेल्प्स मी हियर। सो आई गेस मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो। Preeti, you are studying at SRFTI in animation. Was like acting was always there, or like you still want to be work in animation or something? Like how does it go? It's very similar to what he has said so far. मतलब as a kid I used to exams के time पे कोई भी अगर break चाहिए होता था तो I used to immediately draw, and I used to be like why can't I just बस बैठ के ड्रॉ क्यों नहीं कर सकती मैं। और अब मेरे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मुझे बैठ के ड्रॉ करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ लाइफ हैज रिवर्स्ड इन इटसेल्फ। बट आई थिंक क्रिएटिव फील्ड, स्पेशली विजुअल परफॉर्मेंसेस का जो फील्ड होता है वो इतना फ्लूइड होता है। और आई गेस अगेन बिकॉज ऑफ हैविंग सो मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द टाइम्स वी आर लिविंग इन, एंड देयर सो मच एक्सेसिबिलिटी। अभी हम लोग ब्लेम भी करते हैं सोशल मीडिया को, बट कितना डेमोक्रेटाइज कर दिया है। किसी का भी टैलेंट अब कहीं भी पहुंच सकता है। तो और उससे भी कई चीज़ सीखने को मिलती है। हमें बहुत टैलेंट्स के बारे में पता नहीं होता है कि आई कांट नेम एनीथिंग, बट मे बी लाइक स्टाइलिंग समवन इज लाइक सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सम पीपल हैव वे टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू दैट, एंड वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है। तो I really appreciate getting into different things at different time, and I think drawing से I get a relief. I think
पैंडेमिक के टाइम पे वाज व्हेन आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर एनिमेशन, बिकॉज सब कुछ बंद हो गया था एंड आई वाज वेरी एक्टिव इन माय कॉलेज थिएटर ग्रुप्स, बट देन घर पे बैठे बैठे लाइक हाउ व्हाट डू आई डू नाउ, आई कांट। उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना एक्टिव हुआ भी नहीं था, लाइक देयर वर सम प्लेटफॉर्म्स, पर उसमें जाने से डर लगता था कि पता नहीं, आई एम प्रोबब्ली नॉट रेडी फॉर दिस. So then I again looked into myself, and animation was a great tool क्योंकि you can't arrange a production, you can't get people, so then why not just draw them. आप कुछ कहानी बताना चाहते हो तो ड्रॉ करके 2-3 फ्रेम्स बना के आप ड्रॉ करके कर दो. तो I really enjoyed that, and I think for me I don't like getting bound in an institution. मतलब अगर मैं खुद से let's say अभी सिंगिंग में शौक है, अगर मैं खुद से गा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर द मोमेंट देयर इज सम लर्निंग, सम रूल्स, सम फॉर्मल हो जाता है, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग. सो एनिमेशन व्हेन आई वाज सेल्फ लर्निंग आई रियली एंजॉयड इट, एंड तब बट द मोमेंट आई गॉट इनटू फॉर्मल एनिमेशन, माय टीचर्स आर वाचिंग दिस, मुझे वापस जाना भी है. तो नहीं, आई लर्नड अ लॉट, बट अगेन व्हेन इट बिकम्स फॉर्मल एंड इट बिकम्स टाइम बाउंड, that's when it starts becoming like an exam. You feel bothered. हाँ, that time thing really, I think it's not good for creative professionals. Sometimes it's good to get, मतलब deliver करने के लिए अच्छी बात होती है, पर कभी-कभी वक्त से लड़ना तो बहुत ही परेशान कर देता है. Atul, have you ever had to like juggle between one job that you actually want to do and another job like that you have to do? No, and I think coming back to your first question, which was there, monetizing के लिए आप क्या करते हो और क्या नहीं. I think आज जिस दौर में हम हैं एक आर्टिस्ट के लिए, पहले तो क्या होता था, पेट्रन होता था जो कदरदान जिसको कहते थे, जो आपको आपके खर्चे भी उठा लेगा, आपको ब्रेक भी दे देगा. It's now become more important that artist is her or his own patron, you know, which equals to entrepreneur. Because अब वो टाइम वैसा है नहीं कि you know, ना लोगों की पेशेंस है, और मीडिया इतना बढ़ गया है कि every enterprise wants to dabble into everything from 2 minutes reels to 2-hour films. तो मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है मूविंग ऑन फॉर माई सेल्फ, कि अगर आप जैसे ये जिस प्रोफेशन में हमें ये स्केलेबल है, अगर एक फिल्म आई और वो बहुत चल गई तो आप ओवरनाइट कुछ भी प्राइस डिमांड कर सकते हैं, यू नो, जैसे इनके साथ हुआ होगा शायद स्कैम के बाद, या हुआ है. बट अगर उन सालों में वो नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, यू नो. तो एक सस्टेनेबल इनकम रहनी चाहिए. जैसे मुझे लगता है, मैं कुछ दिन पहले अपने एक असिस्टेंट से डिस्कस कर रहा था कि जिस लेवल पे मैं हूँ, अगर मैं वकील होता तो कुछ केसेस अपने आप ही आ जाते हैं. यहाँ रोज सुबह उठ के फ़ोन करना पड़ता है, कोई क्लाइंट है कोई क्लाइंट है. तो मुझे जैसे शौक रहा है शुरू से, यू नो, माय एजुकेशन इज़ इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, और उसमें जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स एंड लॉ एंड ऑडिट एंड ऑल दैट, उसमें आई वाज वेरी गुड एट लॉ. Over the, I mean, I've represented the Institute of Chartered Accountants at Students' Conference. I've presented papers on excise and all that. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं वो स्किल वापस होन करके, जैसे मैं आया इंडस्ट्री में बिकॉज मुझे नेशनल लॉ स्कूल जाना था और मेरी कट ऑफ डेट निकल गई थी, तो मेरा एज बार हो गया. तो मैंने कहा चलो, मेरे 2 पैशन है लाइफ में, एक लॉ है, एक फिल्म है, तो एक तो निकल गया हाथ से, दूसरा कर लेता हूँ. बट अब मैं फिर सोच रहा हूँ मैं LLB करके एक साथ में, यू नो, दूसरे पैशन को भी. मोनेटाइजेशन इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट, बट आई थिंक यू नीड 2 पैरेलल स्ट्रीम्स, वन स्केलेबल, वन नॉन स्केलेबल, सो दैट, यू नो, द स्केल, until that scalable one hits its mark, you can support it through your own finances and resources. क्योंकि जितना आप वो कर पा रहे हैं उतना आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे इस फील्ड में. अदरवाइज वही है कि जो आपका पहला सवाल था कि क्या रील के लिए या 2 स्क्रीन के लिए आप कुछ लिख दीजिए कि मैं वहाँ पे भी चल रहा हूँ और यहाँ पे भी चल रहा हूँ. तो जब मैं नया था यहाँ पे, पाउडर जो हमारा शो था, हम एक टीवी चैनल के पास लेकर गए थे, स्टार प्लस के पास. आई वॉज नॉट इवन सपोज टू डायरेक्ट इट, शिवम नायर वॉज सपोज टू डायरेक्ट इट. और स्टार प्लस में प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा, ये ना आपका पायलट बहुत सीप्ड इन रिसर्च है. आपने हमारा शो देखा है संजीवनी, तो डॉक्टर्स अंताक्षरी खेलते हैं, कलरफुल हॉस्पिटल है, तो NCB ऑफिस ऐसा क्यों नहीं हो सकता. तब तक वानखेड़े साहब इतना पॉपुलर नहीं हुए थे, लोगों को पता नहीं था NCB एक्चुअली होता क्या है. तो मैंने स्क्रिप्ट उठाई, मैं वापस आ गया, प्रोड्यूसर ने कहा चेंज कर दो. मैंने कहा हमारा आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो क्यों चेंज कर देंगे. बट अब वो करते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, नो, कि क्योंकि अब आप जिम्मेदारियां ले चुके हैं, आप अपना एक दफ्तर खोल चुके हैं, आपके साथ लोग हैं, तो आप जज्बा वही रखते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा तो थैंक यू,
But हाँ, over the years, the feedback in the OTT and everything has come back to what Star Plus was then. कि किचन में खड़ी औरत को भी एंगेजमेंट रहना चाहिए, रादर देन तो आप धड़ाम धड़ूम धड़ाम, मतलब स्क्रिप्ट पे नहीं होगा तो बैकग्राउंड स्कोर पे आ जाएगा कि बजाते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए. तो how do you be choosy and how do you give yourself the freedom of being choosy has to come from, you know, how you manage time and finance. But it's a very very important point for any artist, I think. कि आप एक खास करके फिल्म मेकिंग और ये सारा तो any field of art for that matter is the field of experiments. और जैसे थोड़ा भी सक्सेस मिलता है तो सबसे पहला फियर ऑफ फेलियर ही आता है. आप चाहो ना चाहो कहीं से तो वो होता ही है कोने में. अब इफ यू हैव couple of options with you, you can be fearless for a longer time. ये नहीं पता कि पूरी जिंदगी रह पाता है कि नहीं कोई, पर at least it will help you take a decision which you want to, not something that you will have to. तो वो एक फ्रीडम अगर होती है तो मुझे लगता है जैसे इन्होंने बताया ना कि प्रेशर से नहीं लिखते हैं कोई गाना के ये रील पे चलेगा, तो वो बिना प्रेशर का कुछ क्रिएशन करने के लिए वो ऑप्शंस होना बहुत जरूरी लगता है. This year, like what I've seen is like before this conversation happens, I go through the list of Hindi films of the year and I look at it in a way कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो जैसे मैंने बोला कि मेरे साथ रही थी, उसका कमर्शियल वो नहीं देखता मैं. पुष्पा 2 नहीं देखते. तो पुष्पा 2 भी हो सकती है, पुष्पा 2 मैंने देखी नहीं, पर ऐसी फिल्में जो मेरे साथ रह जाती हैं, कनेक्ट करती है, कोई परफॉर्मेंस या कुछ ऐसा था जो बहुत था. इस साल व्हेन इट कम्स टू हिंदी सिनेमा आई फील लाइक कुछ ऐसी बहुत ही गिनी चुनी फिल्में थी जो कनेक्ट करी, और जो मडगांव एक्सप्रेस वाज वन ऑफ दैट. ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू गाइस जिन फिल्में वो तो काफ़ी गिनी चुनी फिल्में थी. इस साल आई फील लाइक देयर इज दिस थिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे आप बोल रहे हैं. एक्सपेरिमेंटेशन मुझे लगता है हिंदी फिल्मों में और कहानियों में कम होता जा रहा है. इतने ज़्यादा सीक्वल्स बन रहे हैं, पुरानी फिल्में ढूंढी जा रही हैं सीक्वल बनाने के लिए, और काफ़ी सारा टॉप फिल्म जो हैं फ्रेंचाइज फिल्म्स हैं. आपकी स्त्री 2, सिंघम अगेन, तो ये जो फिल्में हैं वो सब फ्रेंचाइज की फिल्म्स हैं. डू यू थिंक नए आईपी और नए आइडिया के लिए उसके लिए ऑडियंस को बुलाना थिएटर में मुश्किल होता जा रहा है? वो तो अब जितने बनेंगे तब पता चलेगा. हाँ, अब बने वो एक्सपेरिमेंट हो तब पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. हाँ, पहले से ही अगर डिसाइड करके किया जाए तो पता नहीं कि वो डेटा को आप कैसे पढ़ते हो, उसको कैसे समझते हो, वो आपकी समझ क्या है, आपके पास जितना डेटा है उसे समझने की. कि हमने सोचा, हमने पूछा 50 लोगों से, तो उनसे पता चला कि ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं. वो 50 लोग कौन है, पूछने वाला कौन है, और पूछा क्या एग्जैक्टली. तो वो बहुत ही ग्रे एरिया है आई थिंक. तो जब तक एक्सपेरिमेंट्स होंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं ऑडियंस रेडी है कि नहीं. पर जितना हमने रिसेंटली पिछले कुछ 3-4 साल में देखा है, ऐसी ही चीज़ें चली हैं जो कि किसी भी इक्वेशन से बाहर थी. यार ऐसा तो सोचा ही नहीं था ना कभी बना, पर वो चला. बट उसके बाद वही चीज़ें बहुत बनती है ना उसके बाद, लाइक बट एवरीबॉडी वांट्स टू फॉलो द सक्सेस फार्मूला. या एंड सक्सेस हैज नो फार्मूला एक्चुअली. कि सक्सेस फार्मूला का बहुत ज़्यादा कुछ हाल ही सालों में कोविड के बाद से, और कि जो फिल्में चल जाती हैं उसकी ही रीमेक बनती हैं. ठीक है, उसी फिल्मों का सीक्वल बनता है. पर ये तो हमेशा से ऐसा ही था. आज से कॉमेडी चली तो 25 कॉमेडी बनेंगी, रोमांटिक चली तो वही. 70s 80s आप कोई भी दशक उठा लें, जो फिल्में चल रही हैं उसी तरह. क्यों फिर पूरे दशक को हम आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं एक जॉनर में. 80s एक तरह का है, 70s एक तरह का है, वो सब है. वो साइक्लिक मैनर में ही चला है, हमेशा से वही रहा है. क्योंकि पैसा लगा रहे हैं लोग, तो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा शोर शॉट है, ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं. लेकिन वो भी रहता है और दूसरी तरह की फिल्में भी रहती हैं. यही साल है ना जिस साल आप बोल रहे हैं कि ये सब है, और इसी साल में गर्ल्स विल बी गर्ल्स भी है, इसी साल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट भी है, इसी साल में लापता लेडीज भी है, इसी साल में बहुत कुछ है, बर्लिन भी है. इसी साल में बहुत सारी फिल्में हैं जो अपने आप में, या मडगांव एक्सप्रेस है या चमकीला है, सब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब भी इसी साल का है. और अब आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पुष्पा 2 के साथ भी कर सकते हैं. वो भी एक पैनल हो सकता है. जस्ट सेइंग कि it's not just this panel you have chosen, it's the panel chosen by the time also in a way. तो वो अपने आप चलता रहता है. मतलब आई डोंट थिंक वो ट्रेंड वाली बात जो है वो सही है कि वो ट्रेंड बनाने में खास करके जो भी
मीडिया है या लोगों के दिमाग में भी एक बनाने के पीछे एक लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, बट आई डोंट थिंक दे एग्जिस्ट। और दूसरे टाइम के साथ मुझे ऐसा भी लगता है, टाइम के साथ ना हमारे बहुत सारे इमोशंस भी धीरे धीरे डिल्यूट हो रहे हैं, जिसमें से एक फैक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए रिस्क फैक्टर भी है। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि आप बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, जैसे मैंने एक बड़ा कमाल का एक कहीं जोक पढ़ा था कि एक पिक्चर लिखी किसी ने और लेके चला गया वो एक प्रोड्यूसर के पास कि देखिए ये मैंने पिक्चर लिखी, अरे ये तो पिक्चर बहुत अच्छी है पर ऐसी पिक्चर कोई बनी नहीं इसलिए हम बना नहीं सकते। यू नो, तो अभी आप ना एक कामयाब पिक्चर और एक प्रोफेशनली विद मुलाज एंड यू नो नंबर्स, उसके साथ अच्छी पिक्चर और बढ़िया बनी हुई पिक्चर और इसने 500 करोड़ कमाया या 1000 करोड़ कमाया, ये इन दो पिक्चरों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। या तो नंबर्स का कंपैरिजन हो सकता है यू नो, या कंटेंट का कंपैरिजन हो सकता है। तो आप अगर कंटेंट का कंपैरिजन नंबर्स के साथ कर रहे हैं तो मतलब आप लापता लेडी का और स्त्री 2 का कंपैरिजन नहीं कर सकते बड़े। वो एक अलग जॉनर है, अपने तरीके का जॉनर है, वो एक अलग जॉनर है, अपने तरीके का जॉनर है। और नया जो आपने कहा कि नया वो सीरीज में चल रही हैं मतलब चीज़ें, वो कि आप नई चीज़ बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। राइटर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब के सब हैं, पर आप आर यू रेडी फॉर दैट? और यू आर सीइंग के अच्छा टेबल पे पैसा कितना आ रहा है, तो वो आप फिल्म बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो दो अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं बोल रहा था, when OTT came, there was this thing in the industry and everybody, viewers also were like कि now this is a space where experiments will happen, where new films will come, new series will come, नई कहानी आएंगी, नए shows आएंगे। धीरे धीरे over the years I was seeing they are also falling in the same rut of numbers, ambient watching की बात हो रही थी। Okay, like why do you guys think that is also happening? Because that was, see, I think it is very simple. Yeah. And I have just jumped into your question because I get this asked a lot. Okay. तो 50 चूरन की दुकानें ऑलरेडी, एक आदमी को चूरन ही बेचना है तो वो डिस्काउंट देगा। तो OTT के लिए डिस्काउंट क्या था? एक सो कॉल्ड क्रिएटिव फ्रीडम कि आप यहाँ आइए कुछ भी कर लीजिए। अब तो उनका वो चूरन बिक नहीं रहा ना इतना, उन्होंने बुला तो लिए, तो इट हैज टू नाउ जस्टिफाई द नंबर्स। सो व्हाट इज वर्किंग फॉर इंडियन मास? यू कीप लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एक OTT के साथ, तो पोस्ट प्रोडक्शन में वो था, तो हमारी बहस होने लगी एंड इट्स एन इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म कुछ चेंजेस को लेके। तो उन्होंने कहा डोंट थिंक ऑफ अस एज इंटरनेशनल स्टूडियो, थिंक ऑफ अस एज अ GEC चैनल, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, जो आपके स्टार प्लस और कलर्स और सोनी है। तो क्योंकि उनको वो मार्केट कैप्चर करनी है ना, तो उनका धंधा है। तो आई थिंक वो जो फैलेसी है, क्योंकि जब स्टार प्लस की भी शुरुआत हुई थी तो वो बेस्ट सेलर्स और राजधानी जैसे सीरियल से ही हुई थी, फिर वो सास बहू पे आ गए। ऐसे ही OTT भी जाएगा और ये हर मीडियम की नियति है कि उनको ऐसे ही जाना है। आई थिंक वो हम कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट देने लग जाते हैं ओवर द स्टार्ट होता है जी, ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। अच्छा है, एक दौर था, लोगों ने कैपिटलाइज किया, पैसे भी कमाए, एक्सप्रेस भी किया। अब वो दौर नहीं, आप मीडियम ढूंढिए अपना। और जहाँ तक है लोग थिएटर में नहीं जा रहे, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लोग क्रू भी देख रहे हैं, लोग लापता लेडीज भी देख रहे हैं, लोग पुष्पा 2 भी देख रहे हैं, तो वो जा तो रहे हैं। पर अब आप बोलें कि सिर्फ पुष्पा 2 चलेगी, तो ऐसा तो है नहीं, लोगों ने तो ऐसा कहा नहीं। यू नो, अगर मैं लोगों से तो कोई एक्सपेरिमेंट हुआ तो अबॉर्शन ज्यादा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम है। यू नो, कि आप पैदा होने से पहले भैया कुछ पता नहीं इसका क्या होगा, तो आप साफ करवाएं, आने के बाद उसका फ्यूचर कुछ। क्योंकि मेरा ये मानना है, सी मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, आगरा से, और मैं अभी भी वहाँ जाके सिंगल स्क्रीन में फिल्में देखता हूँ। और मैंने पिछले हफ्ते पुष्पा देखी वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ 70 रुपए और 50 रुपए की टिकट है। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो एक सीन को दोबारा एंजॉय करने आए थे और इंटरवल में निकल रहे थे कि मुझे वो देखना था तो मैं वो आया, या वो मैंने फोन पे देखा तो मुझे मजा नहीं आया दोबारा, तो मैं ये देखने आ गया। और वो उस तरह का क्राउड था कि वो जितनी बार स्क्रीन पे पुष्पा गुटखा थूकता है, वो साइड वाली सीट पर वो भी थूक देते हैं, है ना। तो उनको एक वैलिडेशन भी उससे मिल रहा है, वो सब है, क्राउड कनेक्ट है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप
सिंगल स्क्रीन में चली हुई फिल्मों की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक्शन फिल्म की ही ज़रूरत है पब्लिक को। पब्लिक शायद आज भी खोज रही है कि उसे एक दुल्हन वही जो पिया मन भाई मिल जाए, या अखियों के झरोखे से मिल जाए, या मैंने प्यार किया मिल जाए, या रॉक स्टार मिल जाए, लेकिन आप अपने खौफ में वो बनाएंगे नहीं। आपको लग रहा है नहीं एक्शन चली है तो एक्शन चलाते रहें। तो इट्स जस्ट what you can justify before investing and where you think that justification matters. It's just simply that. I think that's why this year there have been a lot of re-releases also. Like Yeah. बहुत सारी re-releases हुई फिल्में, और तो like this makes me question कि इसलिए re-releases होती हैं क्योंकि नई कहानियाँ नहीं हैं और ऑडियंस को वही कनेक्ट चाहिए जो इन कहानियों से जो मज़ा आया था, जो इन फिल्मों से मज़ा आया था, वही ऑडियंस को चाहिए। इसलिए प्रोड्यूसर्स आर गोइंग इन द डायरेक्शन कि यार ये ऑलरेडी बना हुआ था, इससे रिलीज कर देते हैं बिकॉज कहानी नहीं है। इज दैट द रीजन और लाइक इज देयर एनी अदर रीजन फॉर दैट? नहीं, अगर हम ये देखें कि क्या क्या री रिलीज हुआ, लैला मजनू हुई, रॉकस्टार चली, अब ये सब तो उसके एकदम विपरीत फिल्में हैं जो हम मान रहे हैं इस समय मास फिल्में हैं, ठीक है, जिसमें एक्शन होता है, जिसमें ये तो सब अपने आप में एकदम ही उसके म्यूजिकल हैं, लव स्टोरी है, ड्रामा है, इमोशनल है, तो ये चल रही हैं। तो फिर वो लॉजिक अपने आप धराशायी हो जाता है कि लोग एक ही तरह की फिल्में देखते हैं। ये री रिलीज हुई हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप 52 हफ्ते हैं हमारे पास, 52 फ्राइडे हैं, 52 फ्राइडे के हिसाब से आप साथ में, एंड वी हैव टू मेनी थिएटर्स, दैट्स आल्सो वन थिंग, वी हैव टू मेनी थिएटर्स, too many people who are not going to theaters because जो भी मल्टीपल रीजन था, सबके हाथ में एक स्क्रीन है, घर पे एक और स्क्रीन है, बाकी जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है, पीपल सेव फॉर द बिग इवेंट फिल्म, जो बता दिया जाता है कि ये तो देखनी है वरना आपका ये अब दिवाली बेकार है, आप ये नहीं देख पाए। तो उसके बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस व्हिच इज नॉट बीइंग catered to, and that audience will find either when there is a Madgaon or a Lapata Ladies in theaters, they'll go watch that. When it is not there, they'll go watch Laila Majnu or Rockstar or Tamasha और कोई भी फिल्म इसमें से वो दोबारा देख सकते हैं। आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई और पूरा हाउसफुल, हम कुर्ला में मतलब एकदम मैडनेस था। सो ऐसी बहुत सारी फिल्में, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज उनको एक ऑडियंस मिल रहा है जो शायद उस टाइम पे इतना नहीं मिला, और अब एक नया ऑडियंस कहानियों की बात ही है। ये नहीं होना चाहिए ना कि वो एक बस इस हफ्ते ही है ये फिल्म, ये जो हमने जो बना पहले भी एक्चुअली री रिलीज बहुत होती थी, नोबडी डॉक्यूमेंटेड एट दैट टाइम। बिल्कुल, आपकी फिल्म हर थिएटर में नहीं आती थी पहले, जो बड़ी फिल्म लग रही है वो एक थिएटर में आई है, बाकी 4 तो खाली पड़े हैं ना, तो वो पुरानी फिल्म लगाएंगे, वो विक्टोरिया नंबर 203 दिखा रहे होते थे, तो वो कुछ और दिखा रहे होते। और बहुत सारी राज कपूर की फिल्में ऐसे ही थिएटर्स में देखी हैं, बचपन में भी देखी है, संगम देखी है, श्री 420 देखी है, आवारा देखी है, ये सब देहरादून में लगती थी ये फिल्में, और बड़ा कॉमन, और वो अच्छा है, एक मौका मिलता है एक दूसरी जनरेशन को एक पिछली जनरेशन की फिल्म डिस्कवर करने। अब फ्लोटिंग थॉट्स की भी बात होती है, बहुत सारे सोशल माइंड्स ना बड़े फ्लोटिंग थॉट्स वाले होते हैं, उनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता कि ये पिक्चर मैंने देखनी है, ये पिक्चर मैंने नहीं देखनी। इन्होंने 3 मेरे दोस्तों ने बोला मत जाना यार, बड़ी बेकार पिक्चर है, तो मैं मान लूंगा, इन्होंने बोला, इन्होंने बोल दिया बहुत अच्छी पिक्चर है चले जाना, तो मैं इनकी मान लूंगा, अच्छा चला जाता हूँ मैं देखने के लिए। आफ्टर अ पॉइंट कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो अपनी एक जगह बनाती हैं किसी ना किसी वजह से, वो वजह अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, वो इंटेलेक्ट भी हो सकती है, वो बहुत सुपरफिशियल भी हो सकती है, वो एक जगह बनाती है। अब तब तक आपको 1-2 साल में थोड़ी सी समझ भी आ चुकी होती है कि यार ये पिक्चर मैंने मिस कर दी थी यार, ये मुझे देखनी चाहिए थी, मैंने ऐसे ही इसकी बात मान ली कि तुम्बाड़ के साथ हुआ, तुम्बाड़ के साथ, मतलब मुझे लगता है मतलब इतनी कमाल की पिक्चर जब वो आई थी, मुझे उस साल की सबसे बेस्ट पिक्चर वही लगी थी, और मुझे ये भी लगा था कि इस पिक्चर को जाना चाहिए यार ऑस्कर के लिए, नहीं जीते कोई बात नहीं, पर पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, एक मेहनत से पिक्चर बनी हुई, यू नो। अब वो जब दोबारा से पिक्चर रिलीज होती है यहाँ पे, क्योंकि हमने वो पहले होता था 6 महीने 3 महीने बाद जाती थी हमारे गांव में पिक्चर, हमारे शहर में पिक्चर के, अच्छा अब ये शोले फलां जगह पे तो दिल्ली में तो आ गई है और हमारे यहाँ तीसरी ईद को आएगी, 3 ईदें निकल जाएंगी जब तक शोले आएगी, तो वो काइंड ऑफ री रिलीज ही होता था उस चीज़ों का। तो अभी जो मिस हो गई पिक्चर मैंने थिएटर में नहीं देखी, और मुझे थोड़ी उन 2 सालों में समझ भी आ गई कि मुझे देखनी चाहिए थी, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं दोबारा से जा रहा हूँ वो पिक्चर, तो वो भी एक रीज़न बन रहा है। और
ये भी बात सही है कि उतनी हम कंटेम्प्रेरी नई पिक्चरें देखने लायक नहीं बना रहे हैं जिसमें हर पिक्चर आप जाएं और देख लें। ये भी है। और वो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है कि ये पिक्चर, फलां पिक्चर, फॉर एग्जांपल आपने तुम्बाड़ की बात की कि यार ये अच्छी पिक्चर है, ये देख के आते हैं, बढ़िया है। और थोड़ी सस्ती टिकट भी है, और कंपैरेटिवली yeah. सस्ती टिकट भी है। तो कोई भी 150 रुपए में आप जाके अगर आप दोबारा देख सकते हो रॉकस्टार, जिसमें कि 9 तो है, 14 है। बट इन अ वे इट्स अ वेरी गुड सोशियो इकोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट, Yeah. कि अगर इस टाइप की फिल्म आप इस रेट में और ऐसे दिखा रहे हो तो लोग देख रहे हैं, दैट सेज अ लॉट Yeah. फॉर डिसीजन मेकर्स Yeah. कि आप व्हाई आर यू नॉट मेकिंग दीस फिल्म्स, And why are you not keeping ticket prices Yeah. low? और ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब मान लीजिए आपने मेहनत से कमाए हुए, सबने मेहनत से कमाए हुए पैसे, आप ये सोच रहे हैं इट्स काइंड ऑफ जुआ, यू आर गैम्बलिंग कि मुझे 1000 रुपया लगाना है इस पे यार या नहीं लगाना। अगर तो बिल्कुल सही है कि वही नंबर आने वाला है, भी जब चरखा घूमेगा तो 7 पे ही रुकेगा आके, फिर तो मैं 1000 रुपया लगाऊंगा, नहीं मैं क्यों लगाऊं। अगर यही 100 रुपया होता, मैं हो सकता है 3 बार लगा ही देता। देखते हैं ना 3 में से एक बार तो लगी जाए शायद, तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वेट कर रहा हूँ सूर्यवंशी कब लगेगी। मिस हो गई आपकी। वो जो है वो इतनी बार वो टीवी पे अब लोगों ने देख, मेरे ख्याल से लोग देखना चाहेंगे कि बिग स्क्रीन पे हीरा ठाकुर वो खीर। You think सूर्यवंशम? सूर्यवंशी तो सलमान, नहीं अक्षय कुमार, ये वाली नहीं, अरे एक अच्छा, और अमिताभ बच्चन वाली सूर्यवंशम ना, हाँ एक सलमान वाली, सलमान वाली है ना, जो पुनर्जन्म वाली, अमृता सिंह, अच्छा अमृता है कि अमृता सिंह, शीबा दोनों ही हैं। ओके, हाँ मैं तो ये अमिताभ बच्चन वाली एक्चुअली उसको ग्लैडिएटर 2 के साथ लगा देना चाहिए था। विजुअली तू बोल के लगा देना चाहिए, ग्लैडिएटर 2 बोल के लोग लगा, खुश हो जाएंगे ग्लैडिएटर में ये। बट टू थ्रो कॉन्टेक्स्ट इन इट, हमने भी इस साल एक पुरानी फिल्म रिलीज करी थी, आई वाज डिस्ट्रीब्यूटर ऑन दैट, बाजीगर, अच्छा, and Cinepolis wanted something, and I'm constantly involved with Film Heritage Foundation also, Purani. They go houseful, people come, people dance, you know. एक जो आज की फिल्मों में जो नहीं मिल रहा लोगों को, अच्छा म्यूजिक नहीं मिल रहा, तो लोगों को एटलीस्ट वो एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। हर कोई डांस कर रहा होता है जब वो स्क्रीन पे बाजीगर चल रहा होता है या काली काली आंखें चल रहा होता है। तो आई थिंक समवेयर आल्सो वी हैव लॉस्ट दैट वन बिग ड्रॉ। सी हमारे यहाँ स्क्रीन राइटर्स अप टिल 70s, जब तक सलीम जावेद नहीं इतने फेमस नहीं हुए, बट गाने एक तरह की संजीवनी बूटी थे हमारी फिल्मों के लिए। फिल्में चले ना चले, गाने चलते रहते थे, बहुत यूनिक पॉइंट था। कुछ लोग बहुत अच्छे से नैरेटिव में उसको पिरो लेते थे, कुछ नहीं पिरो पाते थे। पर अब देखिए कितनी ऐसी फिल्में जिनका आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आर डी बर्मन ने, शंकर जयकिशन ने, मदन मोहन ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया उन फिल्मों में, चाहे वो आर्ट हाउस ही क्यों ना हो। उत्सव के गाने कितने अच्छे किए लक्ष्मी प्यारे ने, दस्तक के गाने कितने अच्छे किए, मदन मोहन जी का था ना शायद दस्तक, वो भी एक चीज यू नो आई थिंक एक रिवाइवल मांगती है शायद। तो इंडिकेशन पब्लिक की तरफ से क्लियर है कि भाई आप कुछ लेकर आइए तो हम आ जाएंगे, और एक सस्ती दर होगी तो हम डेफिनेटली एक चांस भी दे देंगे। और हाँ, आप आएंगे घोड़े पे सवार के 1000, 1500, 2000 की टिकट है, और अब आप चांस लीजिए तो फिर शायद दिवाली भी फीकी हो जाए। I think there's also, like, I don't know about the past trends, but एक power sharing करने का जो will है वो भी नहीं है। मतलब there's always this tendency with the people who actually have the control over, you know, distributing or the, you know, I'm not talking about He's looking yeah, at you're doing a good job. You're doing a good job with bringing the cinema back. I'm talking about modern distributors or people who own cinema halls, that they want to maintain their position. And I feel like in films there should be space for everything. Like in an ideal way, there should be space for everything. It should be a re-release Which it theater, was like at one point. Yeah. And this बट पावर शेयरिंग इज एन ऑक्सीमोरॉन, जो शेयर हो गई वो पावर ही नहीं। power ही है, तो equalize हो जाएगा। But हाँ, ideally if to have that space कि हर type का cinema रहे, and to have this tendency that even like after film comes out, then there is so much मतलब उसको बनाए रखना, उसको ट्रेंड में रखने का जो प्रेशर है वो ऑर्गेनिक नहीं है अभी। मतलब now it's very controlled. मुझे झटका लगा जब अभी ऑल इंडिया रैंक रिलीज हुई हमारी, और छोटी रिलीज थी 100-120 स्क्रीन में, और ठीक है पता चला कि यहाँ लगेगी, पीवीआर में लगेगी। मैं गया देखने 2 दिन पहले कि भाई कुछ पोस्टर वोस्टर, तो पता चला पोस्टर एक भी नहीं है।
तो ये मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि अगर आपकी फिल्म उस थिएटर में रिलीज हो रही है, उसके बावजूद आपकी फिल्म का पोस्टर थिएटर वाला बाहर लगा है, उसके लिए भी वो पैसे लेता है। जी जी जी। तो ये मुझे लगा अच्छा ये हुआ, ये पोस्टर नहीं लगाया है तो ये नहीं, मतलब मैंने पूछा उनसे कि फिर पर आपने छपवा के दिया था और फिर भी नहीं लगाया, या आपने दिया था? नहीं, ये सब तो मुझे अंदाजा था कि ये तो होता ही है ना, मतलब वो पोस्टर वो मंगा लेंगे, फाइल वो छाप देंगे, लगा देंगे। तो आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि मुझे लगा कि ये क्या हुआ, तो मुझे लगा गलती से हुआ होगा। मैं जाके उनको समझाने गया कि देखिए परसों रिलीज हो रही है, एडवांस ओपन हो गया है वेडनेसडे को दोपहर शाम को, तो पोस्टर नहीं है तो लोगों को पता कैसे चलेगा, और आपका ही फायदा है ना। अगर पोस्टर लगा होगा तभी तो लोग आएंगे। पोस्टर अच्छा, पोस्टर जिस फिल्म का लगा हुआ है वो 2 हफ्ते पहले उतर चुकी है। ये भी नहीं कि कोई ऐसी फिल्म का लगा है कि जगह ही नहीं मेरी फिल्म के पोस्टर की। मैंने कहा कि वो तो आपकी वो तो उतर चुकी है 2 हफ्ते पहले, तो वो उसका है अभी जो भी है वो हटाएंगे, जिस दिन हटाएंगे आपको नहीं लगेगा। तो ये सब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि टू गेट अ स्मॉल फिल्म आउट देयर इज सच अ चैलेंज। आपको ये इसमें भी अच्छा, फिर आप जो टिकटिंग वेबसाइट है उस पे भी आपकी फिल्म दिखे लोगों को सामने ही, पॉपअप तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो फर्स्ट पेज पे 8 फिल्में दिख रही हैं उसके लिए पैसे हैं, वो तभी दिखेगी लोगों को। फिर वो नहीं तो बेसिकली वही देखने जाएगा फिल्म जिसको पता है लगी है, और जो ढूंढेगा कि ये कहाँ लगी है, और फिर वो थिएटर में आके भी देयर इज नो एक्सीडेंटल वॉक इन। इफ यू आर देयर एट द टिकट विंडो यू आर लाइक अच्छा ये तो फुल है, ये मैं देखने आया था, तो वो आप फिर जो भी वहाँ बाकी 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो दिखाए गए हैं क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए अपनी फिल्म के लिए, तो ये तो फिर हमने कई जगह कोशिश की कि चोरी छुपे हमने कहाँ जाके अपनी फिल्म के वो स्टिकर छोटे छोटे हमने QR कोड स्टिकर टाइप बनाए थे, वो हम बात करते थे जाके। थिएटर गया मैं, और थिएटर में वो जो कॉफी वाला जो काउंटर है, जो पॉपकॉर्न काउंटर है, वहाँ में बात करते करते चोरी से वहाँ मैंने चिपका दिया। कई जगहों पे चिपकाया मैंने, यहाँ पे भी, एयरपोर्ट पे भी। जिस दिन रिलीज होने वाली थी उससे 2-3 दिन That's the spirit. जयपुर एयरपोर्ट के स्टारबक्स पे अभी तक लगा हुआ था, पिछले महीने तक वो स्टिकर। किसी ने मुझे वहां से फोटो भेजा, अभी तक लगा हुआ है अभी तक। अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया अभी तक कि हटा दिया जाए, तो हो सकता है ऐसा हो, पर लेकिन हाँ ये सब करना पड़ता है। और पहली पिक्चर के साथ मुझे लगता है एक आपकी पर्टिकुलर टाइप की ना रिलेशनशिप होती है। मतलब सोचा ना था पहले, तो आपकी बात से मैं कर रहा हूँ, सोचा ना था, रिलीज हुई और पहला स्टैंडी फन रिपब्लिक में लगा, रात को 12 बजे लैंडलाइन बज गए सबके, अरे एक स्टैंडी लग गया, एक स्टैंडी लग गया। बहुत इमोशनल ये होता है। और वो सारे के सारे जो, क्योंकि जैसे तुमने बोला कि बहुत सारे लोग नए थे, तो सोचा ना था मैं भी सारे ही लोग नए थे। इम्तियाज भी नहीं आया था, मैं भी नहीं आया था, अभी भी नहीं आया, आयशा टाकिया ने की, आयशा टाकिया नहीं, तो ऐसा सबको हो गया। और रात के 12:30 बजे वो 3x6 का स्टैंडी देखने के लिए हम वहां पे पहुंचे, और स्टैंडी देख के आधा घंटा बात करके वहां पे देन थोड़ा कुछ तो, और सुबह तक वो स्टैंडी गायब हो गया था। उसी के गाने में आपने अपना नाम डाला है, उसी के From this year, which is that one film that impacted you? देखिए, एक तो बहुत ऑब्वियस सा जवाब है जो पूरी दुनिया उसके लिए नहीं दे सकते आप। All We Imagine As Light really moved me as a film। बहुत क्योंकि बम्बई को हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार फिल्मों में देखते ही रहे हैं। वो ये है बम्बई मेरी जान से लेकर आप रिसेंटली जो भी फिल्म ले लें, सत्या है एक आइकॉनिक फिल्म है, या बहुत सारी देयर मेनी आइकॉनिक बॉम्बे फिल्म्स, बट देन बॉम्बे एज एन ऑर्डिनरी सिटी विद ऑलमोस्ट नो ड्रामा, ये मुझे और याद नहीं आता है कोई और फिल्म। हमेशा बॉम्बे इज अ सिटी ऑफ ड्रामा, बॉम्बे इज अ सिटी ऑफ गैंगस्टर्स और बिग लव, राइट्स, एम्बिशंस एंड ऑल, जस्ट ऑर्डिनरी सिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, वो हम उसमें लेयर्स ढूंढ रहे हैं कि उसमें सपने हैं, एस्पिरेशन है, लॉन्गिंग है, लॉस है, बहुत कुछ है, बट वो एक आम जिंदगी, आम इंसानों की कहानी है। सलाम बॉम्बे है जैसे एक और आइकॉनिक फिल्म है, अगेन as compared to All We Imagine As Light, too much drama, and Bombay as a city of outsiders,
and directed by female gaze. That is, I think, बहुत यूनिक था. तो मुझे ये शहर बहुत पसंद है, मुझे लोकल ट्रेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मेरे लिए वो लोकल ट्रेन का जो पूरा मोटिव है फिल्म में, और वो आते जाते भी दिखती हैं, वो खिड़की खड़खड़ा रही है, वो सिर्फ बॉम्बे में जो रहता है ना उसको ही पता है कि मॉनसून में मतलब खिड़की बंद करनी पड़ती है और इतनी तेज हवाएं आती हैं, और वो हवा को भी नहीं पता होता है कि आ रही है कि जा रही है, वो बार बार ऐसे ऐसे करती. तो वो बहुत कमाल की इमेजेस हैं उसमें. सो स्टनिंग फॉर मी, वन फिल्म. आपके लिए सर? मेरे लिए स्टनिंग इन अ वे, मतलब शॉकिंग एक्चुअली आई एम से, कि मैं लापता लेडीज जब देखने गया था, मैं इस मेंटेलिटी के साथ गया था कि यार ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करना चाहिए यार. ट्राइंग टू बी, मतलब मे बी मैं स्टूपिड साउंड करूंगा कि एक होता ऐसी पिक्चरें भी देखनी चाहिए, चलो चलो यार सब देखते हैं यार. ऐसा मैं इस अंदाज में गया था कि मैं थिएटर में जाऊंगा, 15-20 लोग होंगे और मैं अपने आप को बड़ा महान समझूंगा कि देखो यार मैं 5 लोग लेके आया हूँ साथ ये पिक्चर देखने के लिए. एंड बिलीव मी, मैं पिक्चर देखने के लिए गया, थिएटर फुल था वहाँ. एंड पिक्चर देखने के बाद मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि हम इस तरह के सिनेमा में अभी बिलीव कर रहे हैं. जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, सामने वाला आपको पता होता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है और मैं बन जाता हूँ. मैं उसको बताता नहीं कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है, मैं बन जाता हूँ बेवकूफ़. वो सिर्फ इस वजह से कि इसको ये लगे रहना चाहिए कि अभी भी कुछ बुद्धू, कुछ बेवकूफ़, कुछ शरीफ लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं. तो उस लिहाज से ये सिनेमा में बिलीव करते हैं हम कि अब भी हमारे यहाँ पे कोई गांव का सिनेमा बन सकता है. अब भी वो स्टोरी कही जा सकती है जिसमें वो छोटा सा टीन का कमरा हो और उस कमरे के अंदर सीन शूट हुआ हो और लोग उसको पसंद कर रहे हो, देख रहे हो. एंड दैट वे आई फील आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट. फॉर यू प्रतीक? अब इन्होंने 2 अच्छी फिल्मों के नाम तो ऑलरेडी ऑप्शंस नहीं है अभी. और apart from my 3 films, I guess what I enjoyed as a performance also was महाराजा. विजय सेतुपति ने मतलब ऐसा परफॉर्मेंस मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है. और फिल्म का नैरेटिव भी ऐसा था कि बहुत सारी जगह पर तो अलाउड ही नहीं करता कोई कि नहीं इधर वीडियो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा टाइम जोन कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट है पास्ट है. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, आई गेस लास्ट के कुछ मिनटों में पूरी फिल्म आपके सामने पूरा जिक्सॉ पजल क्लियर होता है. तब तक यू आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड with your visualization and you're constantly with characters and the story. So I guess I've seen something like this after a long time. Though it was a very disturbing film. मतलब बहुत ही disturbing film थी, इतना डार्क मैं देख नहीं पाता. But brilliant performances. For you, Preeti? इस साल मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं और बिल्कुल एकदम for some reason I was so detached with of course I got a chance to watch things, but since this time I was watching it as a maker, मतलब already in behind the scenes. But because of film festivals, I could watch a film called A Fly on the Wall by Shonali Bose and Nilesh Manyar. So I think मैंने वो फिल्म देखी और एक प्लेटफॉर्म है Letterboxd जहाँ पे हम ऐड करते हैं. तो उस मतलब more than sometimes watching a film, I'm like I can add this on Letterboxd and have a whole list of films. But when I added the film, I didn't feel like giving it a rating. For me, it had transcended beyond any film rating. Business or any film conversation. It was just so personal. मतलब इतना someone has documented a friend so closely, and just like A Fly on the Wall, just how a film is so immersive. So I think I really enjoyed that. It's not a film for me. It's a very personal documentation of life. So yeah. Where did you see it? I watched it in Dharamshala Film Festival. It was at Mami also. Mami also, yeah. आपने देखी? नहीं, मैं मिस कर गया, but I know about the film and I've seen the trailer and all. Sounds very interesting. Yeah. जी, कमाल, मतलब बहुत ही, जिसने भी देखी है तारीफ करी. For you, अतुल? 2 फिल्में हैं. एक तो मुझे कंट्रोल विक्रम मोटवानी की, उसके जो लास्ट के 20 मिनट हैं बहुत पसंद था, जो अनन्या की परफॉर्मेंस है उसमें. और दूसरा आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे पुष्पा 2 बहुत पसंद आई, फॉर द सिंपल रीज़न कि
एक तो मुझे उसमें सुकुमार की राइटिंग बहुत अच्छी लगी, यू नो, हम चाहे जितना मर्जी एक सेंसिबिलिटी के फिल्टर से उसको देखें, वो एक अलग चीज़ है, बट आई थिंक जो एक डब्ड लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने तो हिंदी में देखी है और उत्तर प्रदेश के हार्टलैंड में देखी है, आगरा के एक छोटे से थिएटर में, अगर वो वहाँ तक ट्रांसेंड करके उन लोगों को मूव कर रही है और उनको एंगेज कर रही है और बार बार लोगों को कंपेल कर रही है कि वो आके ये देखें, एंड टू बी ऑनेस्ट फिल्म में ज़्यादा एक्शन है नहीं, फिल्म शुरू होती है एक्शन से, उसके बाद इट्स अ ड्रामा, और कुछ सीन्स तो सुकुमार ने बहुत अच्छे लिखे हैं, जो सेटअप और पे ऑफ का एक जो मज़ा होता है ना हिंदी फिल्म में या एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म में, चाहे वो हॉलीवुड की हो या यहाँ की हो, वो मज़ा मुझे काफ़ी टाइम बाद एक मेन स्ट्रीम हिंदी सो कॉल्ड हिंदी फिल्म में मुझे मिला है। तो मेरे लिए पुष्पा 2 और आई थिंक कुछ हद तक कंट्रोल के जो लास्ट के 20 मिनट हैं वो बहुत अच्छा। On that note, we hope for better, good, nice, interesting films like जैसी आपकी जो सारी फिल्में थी और फिल्में ऐसी मिले। Thank you so much for और सब being थिएटर part में of- मिले। और सब थिएटर में मिले। Every film deserves a big screen. Thank you so much Thank for you. being part of this round table. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.